Anna sir, good morning. Yes, good morning. This is Professor Suresh from Central University of Kerala, Kasaragod. Good morning to you, ladies and gentlemen. I'm Colonel Vijay from Bangalore. Professor Dr. Gopakumar sir, Professor Suresh is here. We have one more Colonel Suresh from Mumbai, my guru. Good morning to all respected faculty members. I am Dr. Vikas Shukla from Uttarakhand. Hello. Yes, good morning, one and all. This is Professor Suresh from Central University of Kerala, Kasaragod. Good morning. I am Sunil Pant. I'm Thank calling you. from NCR, Delhi. Thank you, Professor. Good morning, Pant Saab. I'm Colonel Vijay from Bangalore. It's nice. It's the first time I'm seeing you. Well, yes, my pleasure. Thank you. It's. I think it's looking like it's going to be quite a fruitful discussion because there's so many things that have got compressed into the last few days. I know. As things are moving at such a Rapid pace. rapid pace, that by the time you look at your script, it's already things are moved on. Outdated. Outdated, absolutely. Absolutely. So great.
Good morning, everyone. कर्नल साहब जुड़े हैं. हेलो. जी सर. Good morning to everybody. Anil है क्या इसमें? गुड मॉर्निंग सर. वर्मा जी morning, भी जुड़ Anil रहे हैं जी. सर. यस सर. वर्मा जी भी जुड़ रहे हैं सर. अभी अच्छा, उनको वर्मा जी जुड़ रहे हैं अभी जुड़े जी, नहीं, मैं उनकी फोटो नहीं कहीं दिख रही है. जी 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 सर. जी सर. वो भी जुड़ने वाले हैं सर. पंच सर अभी नजर आए थे. पंच सर आर यू हियर? बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं सर आज. ह्यूज नंबर. Dr. Sanjay ji, good morning. गुड मॉर्निंग सर. Dr. Rajveer from SD College, Palwal. थैंक यू राजवीर जी. थैंक यू सो मच. How are you, sir? आई एम फाइन. और सभी को नमस्कार और वेबिनार अच्छा हो, ये हमारी शुभकामनाएं. थैंक यू. Good morning, sir. Good morning, Sanjay ji. Yeah, good morning. Good morning, dear professors. Dr. Sanjay ji, namaskar. Colonel Vijay from Bangalore. Sir, Colonel sir, how are you, sir? I am all good. Thank you so You much. are looking so smart, sir. So Dr. Sanjay, आप organizers की तरफ से हैं क्या? हाँ, I am the convener, sir. अच्छा, you are the convener. Yeah, तो जो participants हैं अधिकतर कहाँ से हैं इसमें? बेसिकली फ्रॉम मेरे ख्याल से सभी जगह से हैं. ऑल ओवर इंडिया सभी जगह. अच्छा, क्या एकेडमिक्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कौन हैं? हाँ, इसमें एकेडमिक्स भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, दोनों लोग. मेनली. या और बाहर से भी लोग बाग जुड़े हैं बाहर क्या? से बहुत कम 2-4 हो सकते हैं. अदरवाइज केवल एकेडमिक्स और स्टूडेंट हैं. Academics and okay. Yeah. All right. So, or we have to be kept bilingual, sir, also. That's why, because so many students are here, na, sir. That's why. और नॉर्थ इंडिया बेल्ट में थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है, तो हम लोग को थोड़ा हिंदी अंग्रेजी दोनों में रखना पड़ेगा. So those academics and students who are pursuing political science, is it, or no, of every stream, maybe science, maybe social science, maybe sociology, okay. history and economics, all that. All right. Yeah. Good morning, Sanjay ji. Good morning, sir. It's so nice to see that there is so much of interest around a subject like Afghanistan. Yeah. Good morning, Viren. Good morning. Very good morning. Morning, Anil. Nice to see you. So good to see you. I didn't want to delay it, so I registered sufficiently in advance. That's very nice of you. And what about Professor Gopa Kumar? Sanjay ji? अभी शायद जुड़े नहीं है क्या गोपाल कुमार सर, या जुड़ गए हैं, मुझे मालूम नहीं. गोपाल सर आप हैं यहाँ पे? गोपाल सर आर यू हियर? शायद अभी जुड़े नहीं. एक बार सर आपको कॉल करना पड़ेगा. मैं कर देता हूँ. I'll call. Professor Gopa Kumar sir, please join. गोपाल कुमार सर हैं क्या? No, this is the student of Professor Gopa Kumar, Professor Suresh. अच्छा. How are you? Going to okay, sir. Going to okay. Very good. Very good. I'll call Professor Gopa Kumar. और 5 मिनट और है सर. 5 minutes more. तो हम लोग बिल्कुल टाइम से हैं सर. Very good morning, Sanjay sir. Good morning. Who are you? Dr. Neeraj Shukla from KMC. अरे वाह नीरज जी. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Pankaj Kumar, Eminent College, Jamnagar. Thank you. So nice of you being here.
Namaskar, sir. Dr. Good Nanika morning, Chaudhary. sir. नमस्कार नमस्ते Sir, and really the topic is such an interesting one. मुझे लगता है कि academics से जितने भी social science के हो, चाहे किसी भी stream के हो, it's going to be a wonderful topic to actually hear and to get the vibes of it. Sanjay ji, I had a talk with Gopa Kumar just now. He is joining. अनामिका जी नमस्कार. नीरज. नमस्कार नीरज जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको. Very good morning. Very good morning, Professor Gopa Kumar. Grow nice to see you. Your this is mute. Your audio is mute. Yeah. Good morning, Verma ji and other friends. Very good morning and very warm welcome to all of you. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. Good morning, Gopa Kumar sir. This is Suresh from Kasaragod. Oh, I have seen you. Okay. Good morning, Dr. Suresh. Okay, thank you, sir. Thank you. Good to hear that. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Ashish. How are you? Fine, sir. Great. There is a limitation of visibility on this screen, I know. So there are so many people who might be on other, side of the screen. Let me just have a quick scroll. No, there is no problem because on the grid view, there are separate screens and you can roll over. Okay, great. Yeah. That's right. I think technically you are very well organized. Far better than arrangements at many other webinars that I've been attending in Delhi. Viren, credit must go to my very, very able colleagues, especially Absolutely. Dr. Sanjay There has Kumar. been no glitch at all. I mean, and Dr. Dharmendra. I got in within 10 seconds. So I think, it's a very good beginning, actually. Thank you very much for your kind compliments. Sir, good morning. Good morning. How are you, sir? I'm fine, sir. Bye. So Good morning. nice to hear you, sir. And Director Professor A.K. Verma is also here, sir, present. Yes. Very good morning, Professor Pant. Good morning, Very good sir. morning. Good morning. It's a pleasure to be here with all It's of our you. honor that people like you are there in the panel, and we look for. There is a lot of excitement. More than 250% have registered for this event. I do not know how they will be accommodated. That is remarkable. Because the best of the webinars that I have been doing generally are between 100 to 150. Yes. That's the best. Often they are only about 70 to 80. Yeah, we are ourselves surprised, the huge response that we got. It shows that the panel has been so very attractive and magnetic. No, that's because of the topicality of your subject. Those are very kind words to use for a panel. As very rightly said, it's the topicality. Yes, I think yes. This is one of those fast-paced events which is reading like a thriller novel now. Let's hope that the day ends with a great satisfaction, because most of the people are very curious about learning so many things on this subject. And it is probably not many webinars have been held on the subject so far, I am told. So this is going to be a very good beginning. So Sanjay ji, Yes, as our USP stands, it is just 1 minute to 10. Just 1 minute. Okay, sir. So our USP is that we start sharp at 10, 9:60 actually. Yes, sir. So you will start at sharp 10. Yes, sir. And whatever your schedule, the only one change is that because of the office hours of Kamal, Dharmendra would be required to do the final sum up as well as the Thanksgiving. That is the only change in the schedule. All right? Okay, sir. Yeah. धर्मेंद्र जी, आपको कमल जी से बात हो गई थी इस संबंध में? जी भैया सिस्टम तो धर्मेंद्र, आपने देख लिया ना, कमल जी शायद ऑफिस का इशू है. जी सर, कोई बात नहीं, ठीक है. ओके. धर्मेंद्र, स्टार्ट नाउ.
ऑलरेडी 10 o'clock. सभी को प्रणाम। एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आयोजित आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में हम CSSP की तरफ से सारे पैनलिस्ट का, सारे प्रतिभागियों का, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे जूम पे हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं या फिर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। CSSP एक ऐसी संस्था है जो पूरी तरह से एकेडमिक्स को डिवोटेड है, और एकेडमिक्स को डिवोटेड कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऐसी घटनाओं से, ऐसे व्यवस्थाओं से अपने आप को अलग नहीं कर सकता जो दुनिया को प्रभावित करती हैं। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी पॉलिटिक्स CSSP कानपुर ने आज का यह वेबिनार आयोजित किया है। हम एक आग्रह जरूर होगा आप सभी से कि आप विजय रावत जी, सॉरी, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने आप को म्यूट कर लें। संख्या ज्यादा है, इसलिए नेट का भी इशू आ सकता है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें स्पीकर के अलावा। दोस्तों, आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर को दो तरह की परंपराएं हम इतिहास में देख पाते हैं। एक परंपरा है जब 11 सितंबर को ही मध्ययुगीन धार्मिक कट्टरता ने नवीन तकनीकी को हथियार बना के और अमेरिका के राष्ट्रीय प्रभुता के प्रति वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकवादी हमला किया था। उसी परंपरा के कुछ ऐसे लोग जो आज भी शक्ति और सत्ता में विश्वास करते हैं, हथियारों में विश्वास करते हैं, हमारे पड़ोस में पुनः सत्तासीन हुए हैं। एक परंपरा वो है। एक परंपरा भारत की भी रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 11 सितंबर 1893 का वह दिन था जब भारत ने स्वामी विवेकानंद के माध्यम से अपने पुरानी ऐतिहासिक परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए और पूरी दुनिया को एकता के सूत्र में, धर्म के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। वो धार्मिक कट्टरता नहीं थी। हम उसी परंपरा का, अध्यात्म का, धर्म का और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज वर्मा सर के सानिध्य में संजय सर के साथ आज CSSP के माध्यम से इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है, हम ये आशा करते हैं कि हमारा ये वेबिनार निश्चित रूप से पूरे विश्व को एक दिशा दृष्टि देने में सक्षम होगा, सफल होगा, समर्थ होगा। CSSP क्या है, आज हम इस पर सुनना चाहेंगे। हम लोग निश्चित रूप से वर्मा सर का वक्त आएगा। मैं बार बार सोचता हूँ 2003 में जब उन्होंने CSSP को स्थापित किया था तो उस समय तो वर्मा सर CSDS के साथ जुड़े हुए थे। एक बड़ा जबरदस्त चढ़ाव था। सर ने, जहां तक हमको याद है, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। सर को अमेरिका में, फिर सिंगापुर के विश्वविद्यालयों में, पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों में, विश्व के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में आमंत्रित किया जाने लगा था। फिर ऐसे समय में सर ने CSSP की स्थापना करके आखिर हम जैसे छोटे लोगों से जुड़ने का प्रयास क्यों किया, ये तो सर ही बताएंगे कि सर के मन में क्या थी, कौन सी ऐसी बात थी जिसके माध्यम से उन्होंने CSSP को स्थापित किया था। लेकिन स्थापना के बाद से ही CSSP ने निश्चित रूप से एक मानक स्थापित किया है और उसी मानक के अनुरूप आज हम इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। CSSP ने स्थापना काल के बाद से ही एक जर्नल निकालना शुरू किया था, शोधार्थी, जो हमको लगता है एकेडमिक्स के हर व्यक्ति को बड़े अच्छी तरह से ज्ञात थे। लोग उसको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और लोग उसको पसंद भी करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। CSSP और भी बहुत सारे सेक्टर में काम करता रहा है। हालांकि CSSP को किसी प्रकार की शासकीय मान्यता प्राप्त नहीं है। हम ना तो ICSR से जुड़े हुए हैं और ना ही किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी CSSP ने हर उस बच्चे के लिए जो प्रयास किया है
जो भी रिसर्च के फील्ड में उतरना चाहता हो। हमने इलेक्शन स्टडीज में भी हाथ आजमाया कर लेती हूँ, और इलेक्शन स्टडीज में हमने केवल हाथ नहीं आजमाया, अगर इलेक्शन रिजल्ट के पिछले यूपी इलेक्शन के नेशनल इलेक्शन के रिजल्ट के दिनों के एक हफ्ते पहले के फेसबुक पोस्ट को खंगाला जाए तो संजय जी और सर के फेसबुक पे आपको एग्जैक्ट सीट मिल जाएगी जो प्रेडिक्शन हम लोगों ने किया था। हम रिसर्च के फील्ड में भी अवेयरनेस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शोध की संस्कृति बदले CSSP के माध्यम से, और इसके लिए हम शोध के क्षेत्र में समय समय पर इस तरह के वर्कशॉप और इस तरह की चीजें आयोजित किया करते हैं। समय की नब्ज पर हम हाथ रखते हैं, और उसी के क्रम में इस तरह के वेबिनार हमने चाइना ने जब गलवान घाटी में इंटरेक्ट किया था तब भी हमने एक वेबिनार आयोजित किया था। हम आज भी इसी तरह के वेबिनार में बैठे हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसे पैनल के साथ बैठे हुए हैं और एक ऐसे मुद्दे पर बैठे हुए हैं जिस मुद्दे पर शायद अभी विश्व के किसी देश में इस तरह का बड़ा सेमिनार और इस तरह के बड़े सम्मानित पैनल के साथ कोई बड़ा वेबिनार अभी तक आयोजित नहीं हो पाया है। ये शायद पहला प्रयास है CSSP की तरफ से, इसलिए अगर कोई त्रुटि भी रह जाती हो तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा मांगूंगा। आज हमारे पैनलिस्ट में जिनका नाम नहीं रह पाया उनकी तो बात मैं नहीं करता, उनकी बात मैं उनको भी स्वागत करूंगा उनका मैं, लेकिन जो बड़े नाम पैनल के रूप में हमारे सामने हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर गोपा कुमार सर जी, आप केरला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और एकेडमिक्स को समर्पित हैं। आप वाइस चांसलर रहते हुए भी मैं जब आपको देख रहा था तो जितने फेलोशिप आपके नाम पे हैं, निश्चित रूप से यह आपकी कर्मनिष्ठा को और शिक्षा के प्रति आपके समर्पण को प्रदर्शित करती है। मैं स्वागत करता हूँ इस वेबिनार के मंच पे आपका, गोपा कुमार सर जी का। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से बहुत लेट आवर में हम लोगों के साथ जुड़ पाए प्रोफेसर असमर बेग सर जी, सर की टीम के साथ वो रहे हैं, पहले से भी हम लोगों ने उनका दर्शन भी किया है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। एक अच्छी पकड़ है उनकी मुस्लिम पॉलिटिक्स पे और नेशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ वो सामरिक विशेषज्ञ भी हैं। हमें उनको भी सुनने का मौका मिलेगा, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि ये केवल एकेडमिक्स नहीं, एक ऐसी विभूति जो फॉरेन रिलेशंस के मामले में या इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में स्वयं अपने आप को संलग्न करती है, केवल लोगों के साथ बातचीत नहीं करती वरन फॉरेन रिलेशन को आयाम देती है। ऐसे व्यक्ति हम लोगों के बीच में राजदूत एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता सर जी हैं हम लोगों के बीच में, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप कैरेबियन देशों में, साउथ अफ्रीका के देशों में, त्रिनिडाद टोबैगो, तंजानिया सहित बहुत सारे देशों में भारत के हाई कमिश्नर रहे हैं। आपने लगभग 37 साल भारतीय विदेश सेवा में बिताया है। 37 साल के अनुभव के साथ आप जब आज भी इस वेबिनार में भारतीय विदेश नीति और इस तरह की अफगानिस्तान समस्या पर बोलेंगे तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा वेबिनार और ये पूरा का पूरा शैक्षणिक समागम निश्चित रूप से लाभान्वित होगा, ऐसा हमें विश्वास है। आप केवल भारतीय विदेश सेवा में ही नहीं रहे वरन आपने JNU में विजिटिंग फेलो के रूप में भी जुड़ के आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने एक बड़ी सेवा की है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक व्यक्ति जो सेना में रहते हुए बॉर्डर पे लड़ाई भी लड़ा, मुझे याद है मैंने देखा है 1971 में 71 की बांग्लादेश वार के समय आप पश्चिमी कमान संभाल रहे थे, कर्नल विजयकांत चैनजी जी, और सेना से रिटायर होने के बाद से आप एकेडमिक्स की तरफ मुड़ते हैं और एकेडमिक्स की तरफ मुड़ने के बाद आप पूरी तरह से भारतीय दर्शन के साथ जुड़ जाते हैं। आप संस्कृत में PhD करते हैं, MPhil करते हैं, वेद वेदांत अद्वैत वेदांत की पर आपकी अच्छी पकड़ है। आपने दर्जनों देशों का भ्रमण किया है, आपकी बहुत सारी किताबें हैं। मैं कर्नल विजयकांत चैनजी जी का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो काबुल से आज भी जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान से आज भी जुड़ा हुआ है और आर्थिकी के क्षेत्र में आप गहरी पकड़ रखते हैं, सुनील पंत सर जी। सुनील पंत सर का भी स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस वेबिनार में। आप बैंकर्स
भारतीय स्टेट बैंक की सेवा से शुरुआत करते हैं और शुरुआत के बाद आपने आर्थिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। आज भी आप बहुत सारे बैंकों के साथ अमेरिकी अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, आप डायरेक्टर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग के बीच सेकेंड सेशन में जुड़ेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी। नई उम्र है, नया उत्साह है। आप सीपॉट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे और साथ ही साथ जब भी कभी एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात होती थी, आईआर की बात होती थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होती थी, तो कम से कम नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए एक समस्या जरूर दिखाई देती थी कि वहां नॉर्थ इंडिया में हिंदी में कोई चीज मैटर उपलब्ध नहीं होता था। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव ने एक मुहिम शुरू किया है कि उनके बहुत सारे मैटर हिंदी के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं और उन्होंने एक वेबसाइट भी शुरू किया है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशीष भाई साहब, डॉक्टर आशीष शुक्ला जी, आपको हम पैनलिस्ट कहें या फिर सीएसएसपी की तरफ से कहें, हम लोग आपको अलग नहीं मानते। आपको सीएसएसपी के एक मेंबर के रूप में स्वीकार करते हैं, फिर भी आज पैनलिस्ट के रूप में आप एमिटी यूनिवर्सिटी से हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपने मुस्लिम देशों में रहते हुए, विशेष करके पाकिस्तान में रहते हुए आपने जो अनुभव अर्जित किया है, निश्चित रूप से आज वो काम आएगा और इस वेबिनार का आपकी शोभा बढ़ाएगा। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस वेबिनार में बहुत सारे नाम जो पैनलिस्ट के रूप में नहीं है, इसके बावजूद भी हमसे जुड़ने वाले हैं। संजय सर हैं, संजय गुप्ता सर हैं, चंद्रमोहन भाई साहब हैं, और साथ ही साथ जब मैं स्क्रीन को देख पा रहा हूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें स्क्रीन में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप में पैनलिस्ट हो सकता है। मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। और मुझे लग रहा है कि मैं 3 मिनट लेट हो रहा हूं अपने टाइमिंग से। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए सीधे वर्मा सर से, चूंकि मुझे दिया तो ये गया था कि सीएसएसपी, और सर हम आज सचमुच ये बात जानना चाहेंगे कि आपने सीएसएसपी की स्थापना क्यों करी थी, क्या वजह थी, अपने मन की उद्गार आज हम जानना चाहेंगे। बाकी स्वागत तो आप करेंगे ही, आपके बहुत सारे लोग हैं, हमारे सारे गुरुतुल्य लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वर्मा सर। थैंक यू धर्मेंद्र, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और बहुत अच्छी शुरुआत की। चूंकि हमारे देश के सभी क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं, सो वी मे बी गिवन द लिबर्टी टू बी बाइलिंगुअल, कभी इंग्लिश में बोलेंगे, कभी हिंदी में बोलेंगे, सो दैट हर व्यक्ति को मतलब समझ में आ जाए। साउथ से भी बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, तो एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल विद बाइलिंगुअलिज्म। तो एक चीज तो मुझे ये कहनी है। दूसरी चीज, मैं वास्तव में आज पर्सनली बहुत ही obliged फील कर रहा हूँ। I feel personally very grateful to this eminent panel and each and every member of the panel who very kindly and very quickly accepted our request to join this issue. And I must tell you that confessing truth is our USP, and personally I am absolutely ignorant about IR. When people talk about IR, I keep myself, just as a listener. So I have assigned to myself that role, that I will just be listening to this eminent panel and try to learn something about Afghanistan, Taliban, and other things. I have been asked 2 pointed questions. One is that why I started CSSP when I was, with CSDS Delhi for about 20 years or so, and in a very wonderful company of Yogendra Yadav and Professor Gopa Kumar and Professor Sanjay ji and so many eminent people all over the country. There was one person from one state. So being in the company of such a wonderful group, why it came to my mind that I should be starting a small center like CSSP in Kanpur way back in 2003. और इसका कारण ये है कि during my 40 years of teaching, I have realized that the culture of research in हिंदी बेल्ट इज गोइंग वेरी डाउन। हम लोग ज्यादातर हिंदी में काम करते हैं, हिंदी भाषा के लोगों के साथ काम करते हैं,
तो ये देखा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और इसी तरीके से हिंदी के बेल्ट में एंड बाय एंड लार्ज ऑल ओवर द कंट्री, जो हमारी संस्कृति है शोध की और अध्ययन की, उसमें बड़ी गिरावट आ रही है। और वो चीज हमको और भी तब समझ में आई when I was invited by foreign universities, और वहाँ का मैंने संस्कृति देखा, वहाँ का मैंने देखा लेवल किस तरीके से लोग पढ़ते लिखते हैं। तो मेरे मन में एक उठा कि हमारे देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स तो खुल जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बहुत सारी और चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और शायद उतना रिसर्च पे अच्छे ढंग से फोकस नहीं पकड़ पाते हैं। तो हमारे मन में एक ये छटपटाहट थी कि हम लोग एक ऐसा रिसर्च सेंटर शुरू करें कानपुर में, जो कि कानपुर में चूंकि मैं था इसलिए वो उसका बेस हमने कानपुर बनाया, लेकिन उसकी भावना यही थी कि जो हिंदी बेल्ट के हमारे छात्र हैं उनको हम लोग किसी तरह से उनकी सेवा कर सकें और उनके शोध की गुणवत्ता को बढ़ा सकें। एक तो हमारा बेसिक जो है पर्पस ये था, और दूसरा पर्पस ये था कि हम लोग बहुत सारी चीजों पे तो फोकस करते हैं, लेकिन खास तौर से हम पॉलिटिकल स्टडीज पे, इलेक्टोरल स्टडीज पे भी फोकस मोर। एंड आई हैव बीन वर्किंग विद CSDS and I was working as a state coordinator of CSDS for some time, along with my eminent friend Professor Asmair Beg and Sudhir ji from Azamgarh. And we had a very, good, a feel of working together. And whatever the analysis that we presented, I must give credit to my team, of course, but it was always on dot. In 2007, we said 206 seats to BSP. It came exactly 206. In 2012, we said 230 seats to SP, and they got 226 seats. In 2017, we said that the BJP will go beyond 265, what is their mission, 265, and they got over 300 seats. And in latest 2019 parliamentary elections, we said 60 to 65 seats, BJP got 64 seats. So what I'm trying to tell you, that whatever we have been doing along with our team, our focus has not been on the quality, that so many sample, large sample, and achieval rate 100%. No, our direction to our team is that be just honest in the field and do your work honestly, even if it is quantitatively less. And that has paid very well. Whatever our team, हमारी जो टीम है वो फील्ड में जाती है तो बहुत फ्री रहती है कि हाँ सर तो कुछ कहेंगे नहीं, और हमको बिल्कुल चाहे हम 2 लोगों का सर्वे करें चाहे हम 50 लोगों का सर्वे करें, डजंट मैटर। और इससे क्या हुआ है कि जो हमारा डेटा आता था वो डेटा बिल्कुल साइंटिफिक होता था, बहुत एग्जैक्ट होता था, रियलिस्टिक होता था। उस डेटा को हम अपने सब्जेक्टिव असेसमेंट से मिला के और हम लोग अपने प्रोजेक्शंस देते रहे, एंड वी हैव बीन एबल टू सक्सीड इन बैंगिंग ऑन द डॉट। तो एक ये भावना थी कि भाई इलेक्टोरल स्टडीज को आगे बढ़ाया जाए, उत्तर प्रदेश में कल्चर ऑफ रिसर्च को डेवलप किया जाए। और मैंने ये देखा कि टैलेंट की कमी कभी नहीं होती है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में तो बड़ी बड़ी सुविधाएं होती हैं, लेकिन हम लोग के पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, और हम लोग जो है वो बिना सुविधा के हमने कहा कि भाई अगर हम काम करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। तो जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बताया कि भाई हम लोग अपनी अभी तक कहीं से फंडेड नहीं है या हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से नहीं है, हम अपने से ही अपने रिसोर्सेज को रेज कर लेते हैं। और हमने ये महसूस किया जीवन में कि रिसोर्सेज दे नेवर बिकम एनी हिंड्रेंस इन योर, इफ योर डेडिकेशन इज देयर एंड इफ योर मोटिवेशन इज देयर एंड इफ योर टारगेट इज गुड and it is dedicated to the social cause and the cause of the student fraternity, then your resources they don't come in your way. तो ये 2-3 चीजें थी जिसकी वजह से हमने सोचा कि let us make a small humble beginning, and I am very grateful to God Almighty that good people have been joining us. Like I can see around 100 people have already joined this webinar today, as I can see on the screen, and more than 200 people had actually registered. So let us see, they will be joining in probably a little late, but since we start on time, we can't wait for people to join. So these are the reasons why we have been started this CSSP,
And we wish that this pandemic has given a very, one great advantage to the CSSP, that sitting at the comfort of our homes and without spending a single penny on TA and DA and other, hosting people in your city, Kanpur, you can pennilessly, do such wonderful, panel discussions and so on. So that is one advantage of the pandemic that I can see. So this is about how and why the CSSP was started. The second thing is that it's a very, I cannot resist the temptation of welcoming my very dear friends whom I see here on the screen. I can see Professor Gopakumar, with whom I had the privilege of working for 20 long years in Delhi with CSDS. And later, he was very kind when he was Vice Chancellor of the Kerala Central University. I had an opportunity to visit the Kerala University as a visiting fellow for some time and then stay together. And so that was a wonderful time that we spent also, of course, academics apart. So that I am very grateful that I just approached him, and he said very readily he agreed to, and he's an expert in his own right. I know I wanted to actually learn. He's a wonderful combination of the domestic politics and the international politics. That is a very unique combination. Normally, people are either focused on the domestic or on the international, but he's a unique blend of both the things, domestic and international. So we look forward, Professor Gopakumar, to your pointers and presentations today with great excitement and curiosity. I can see Ambassador Viren Gupta, who, as you probably may not know, we were batchmates at Allahabad University and together stayed in Muir Hostel. And it was a wonderful, feeling to get connected after a very long time, though we briefly met here and there, Delhi, etc., for some, whenever we had some, gatherings, hostel gatherings. But this was one occasion I thought there would be revival of, relations. And in his own right, as Dharmendra has very rightly pointed out, that he is a unique blend of, and you probably, most of you would not know that he is a science person. He is a science person, if I correctly remember. And a transition from science to diplomacy and foreign service must be a very deadly combination, because a person coming from a science background can see things in a diplomatic world and foreign policy issues with a different lens, probably. And the optics of Viren would probably be very different from what the academicians would probably try to understand. So I was very grateful to him for having accepted my invitation, and we look forward to, and he has some very exciting things to share today, and probably all of you must wait because he is probably the second half speaker, and I'm quite sure that most of you would be staying and listening to his wonderful presentations. In addition, as I can see Professor Asmer Beg and so many other things, and other panelists on the, so many names. I am running short of time, so I must cut short because we try to stick to the schedule. I was assigned 10 minutes, so 10 minutes almost over. So without, naming other friends, I can see Professor Jiten Narayan from Bihar, who's a very good friend, and we had been, we stayed together for some time here and there. And so many other friends I can see on the screen. I welcome you all and wish that your participation today and presentations would be very eye-opener and very enlightening to the entire group which has assembled today. और मैं आशा करता हूं कि आज जब शाम को हम लोग यहाँ से जाएंगे तो हम लोग बहुत ही अपने को एनलाइटेंड और रिवार्डेड एकेडमिकली महसूस करेंगे। मैं अफगानिस्तान पे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान जब भी टर्म आता है तो मुझे गांधारी याद आती है गांधार याद आता है महाभारत का, और हमें याद आता है काबुली वाला रविन्द्रनाथ टैगोर की वो कहानी, जिसमें कि जो बड़ी इमोशनल थी, और मेरे ख्याल से हम सभी लोगों ने उसको पढ़े हुए हैं। सो गांधार का और ये गांधार का और काबुल का मसला केवल राजनीतिक नहीं है। इट इज व्हाट अ track 3 diplomacy, which we call the people to people, connections. It's an age old connection, and whatever the political, economic and other considerations we bring in our discussions today,
the cultural always overwhelms all the considerations. और इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये जो पाकिस्तान, ये जो अफगानिस्तान का मसला है, हम लोगों के लिए केवल ये एक ऐसा मसला नहीं है जो कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल से या मिलिट्री एंगल से या सिक्योरिटी एंगल से हम इसको देखें, इसको हम एक कल्चरल एंगल से भी जरूर देखते हैं हम सभी लोग। और इसीलिए अफगानिस्तान में कुछ भी होता है तो हम सब लोग यहाँ पे इमोशनली इतने सरचार्ज हो जाते हैं। प्रॉब्ली दैट्स द रीजन व्हाई सो मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट this panel discussion today. So without taking any further time, I have already exceeded my brief, and I am sorry for that. And I would request the compeer, Dr. Sanjay Kumar, who he is the man who is going to conduct the show today throughout the day. A very challenging job, because he has to control the people so far as the time schedule is concerned, and also in the open session give as many people chance to speak as it is possible for him to do that. So thank you all again. I welcome all the panelists, I welcome all the participants, and I welcome all the people who are watching this entire live program on Facebook and YouTube. Thank you very much. Back to Sanjay ji. Thank you, sir, for your kind words. Before starting my views or my presentation about Afghanistan, first of all, I must make an apology to all of you that due to some technical reason, not more than 100 people are joining. Initially, I thought that we have a capacity of 500 people for joining this seminar or webinar, but no way. Already this live streaming is going on YouTube. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं यहाँ पे, आपके संगी साथी जो भी हैं, उनसे आप जरूर कह दें कि YouTube पे जुड़ जाएं और वो देख सकते हैं। हाँ, ये इंटरैक्टिव नहीं हो सकते हैं, वो उनका इंटरैक्शन नहीं हो पाएगा। अदरवाइज फेसबुक पे और यूट्यूब पे हम लोग लाइव हैं। तो खैर, विद दैट, और दूसरी चीज ये कि आज ये जो वेबिनार है, मैं पुनः एक बार सभी डिग्नेटरीज का, जो एस्टीम्ड स्पीकर्स हैं, उन सबका स्वागत करता हूं। और मैं सभी को CSSP के मंच पर आने के लिए अपनी तरफ से साधुवाद और बहुत ज्यादा आपका मैं इस्तकबाल करता हूं। इनफैक्ट वर्मा सर ने जो लास्ट में नोट रखा है, संस्कृति की जो बात की है, कल्चरल संस्कृति की जो बात की है कि which cannot be ignored at all. मुझे भी ये बात सही लगती है कि for the last 20 years, और आज चूंकि this is आज 20 साल पूरे हो गए हैं, आज 20 साल में क्या बदला है अफगानिस्तान में किस प्रकार से चीजें चेंज हुई हैं। तो मैं इसे एक चीज जो मैंने कहीं पढ़ा भी था कि बेसिकली अफगानिस्तान could be termed as the graveyard of empires. See first the United Kingdom 1919 तक, उसके बाद आप देखेंगे कि USSR ने जिस प्रकार से 79 में अपना हस्तक्षेप वहां पे किया था और उसके बाद वापस जाना पड़ा, और फिर बाद के वर्षों में आपने यूनाइटेड स्टेट्स को देखा कि, और आप कह सकते हैं, और मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं है, कि जितने भी बड़े सुपर पावर ने अफगानिस्तान में दखल अंदाजी करने की कोशिश की, उन सबका नतीजा बहुत ही बुरा निकला और मुंह की खाई। आखिर व्हाट आर द एग्जैक्ट रीजंस? क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, कि इडियोलॉजिकल रीजन हो सकता है, कि इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, या फिजिकल रीजन? जिस प्रकार से अफगानिस्तान का जो पूरा का पूरा अगर आप मैप देखें तो आसान नहीं है, वहां के लड़ाई को आसान नहीं है जीतना और लड़ाई को लगातार बनाए रखना, खास तौर से जो विदेशी हस्तक्षेप हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ने 20 साल में जो काम किया, 30 अगस्त को उसकी सेनाएं वापस चली गई, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को भी समझ में आ गया कि आसान नहीं है अफगानिस्तान में अपने आप को बनाए रखना। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कहीं ना कहीं कल्चरल ट्रेड से भी जुड़ जाती है, कि जो अफगान पीपल हैं,
दुनिया में सबसे बड़े लड़ाके के तौर पर मशहूर हैं। इनसे बड़ा लड़ाका कोई नहीं है। इनके अंदर एक गुर्बत है, इनके अंदर एक कुव्वत है, इनके अंदर वो चीज है जिसके आधार पर यह बड़ी बड़ी शक्तियों को भी पराजित कर सकते हैं। तो अफगान का जो पूरा कल्चरल ट्रेड्स है, उनके अंदर जो इनबिल्ट क्वालिटी है, एक रेशियल इनबिल्ट क्वालिटी जो है, वो अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बड़े सुपर पावर्स को अपने पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे बीच में सुनील पंत साहब हैं और आई एम ईगरली वेटिंग द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ अफगानिस्तान आल्सो ऑन दिस वॉर, क्योंकि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं और डिटेल में आप सर बताएंगे। लेकिन जो मिलिट्री एस्पेक्ट है, कर्नल विजय चेंजी साहब यहाँ पर हैं और जो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट है, सबसे लास्ट में हमारे साथ जुड़ेंगे राजदूत वीरेंद्र गुप्ता जी, एम्बेसडर रहे हैं वो। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के एंगल से हमारे बीच में डॉक्टर आशीष शुक्ला हैं, अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं और एक्स वाइस चांसलर केरला यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गोपा कुमार साहब हैं। ये सारे लोग जुड़ेंगे। लेकिन एक गुजारिश आप सभी लोगों से है कि फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन के दोनों के एंड में हम लोग लगभग 1.25 घंटे का आसपास एक इंटरैक्टिव सेशन होगा और इसमें कुछ हमारे महत्वपूर्ण विद्वान साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं या जिनको मेन स्पीकर के तौर पर हम नहीं जोड़ पाए हैं, उनको भी हम मौका देंगे 5 मिनट बोलने का। तो एक तो यह बात है और दूसरी चीज यह है कि जो टाइम अलॉटेड है, मैं चाहूंगा कि आप सभी स्पीकर्स अपने टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि दिस इज द यूएसपी ऑफ सीएसएसपी दैट वी स्टिक टू आवर टाइम प्लानिंग। और अभी पिछले 19 अगस्त को हम लोग ने एक वर्कशॉप कराया था प्लेजरिज्म पे, हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म। उसमें भी 10 से 4 तक विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट हैविंग एनी ब्रेक हम लोग ने कंटिन्यूअसली किया था। लेकिन आज आधे घंटे का एक ब्रेक है, 1:30 से लेकर 2 तक। उस बीच में हमारा सिस्टम तो ऑन रहेगा, लेकिन आप सभी लोग उस बीच में चाय पानी नाश्ता और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू एट योर ओन विल। तो अफगानिस्तान की जो प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री, रेशियल, ये तमाम सारी चीजें हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, परहैप्स द न्यू रेजिम, तालिबान सेकेंड रेजिम इज गोइंग टू टेक ओथ। और शायद एक प्रवक्ता, तालिबान के प्रवक्ता का बयान भी आया है कि दिस मे बी द डूम्सडे फॉर यूनाइटेड स्टेट्स 11th of September, but this is our pride day for all of us as तालिबानी। तो ये जो एक कह सकते हैं कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो विरोध इडियोलॉजिकल कंटूर आगे बढ़ा है, इसको किस प्रकार से हम लोग बांट सके, कैसे हम इसको समझ सके, और आने वाले समय में ये जो चुनौतियां हैं और भी ज्यादा गंभीर होने जा रही है। 33 मेंबर्स की जो कैबिनेट बनी है तालिबान की, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द तालिबान फर्स्ट? परहैप्स नॉट। इन माय ओपिनियन almost the same thing or the same people have been chosen in the second regime also। और जो एक फंडामेंटल कैरेक्टर है तालिबानियों का, उस फंडामेंटल कैरेक्टर को इंटैक्ट रखने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि तालिबान may be stooping some kind of compulsive necessities out of this world scenario, but they are going to dictate the terms in the near future also। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी तालिबानी, और जिस प्रकार से इन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है, वो बात साफ साफ इशारा कर रही कि इसमें से 6 लोग इनके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने इनाम रखे हुए हैं, इंटरनेशनल आतंकवादी के तौर पर इनके ऊपर टैग लगा हुआ है। खासतौर से इन जो हक्कानी ग्रुप है, सलाहुद्दीन रब्बानी, और सबसे बड़ा जो रोल है वह हक्कानी ग्रुप का ही है। और माना यह जाता है कि हक्कानी ग्रुप के जरिए पाकिस्तान ने एक प्रकार से अपनी स्टैंपिंग कर दी है इस तालिबानी गवर्नमेंट के ऊपर। तो शुड इट बी सीन लाइक दैट?
कि पाकिस्तान has got an upper hand in the formation of this new Talibani government, and what could be the possible repercussions before India? क्या भारत की स्थिति इस समय आप कह सकते हैं सांप और छुछुंदर वाली होते जा रही है, या कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें काट मार गया हो कि हम we are not in a position to express our views openly कि whether to subscribe तालिबान और to oppose तालिबान, हम शायद इस स्थिति में अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं। तो डिप्लोमेटिकल एंगल से हमारे साथ वीरेंद्र गुप्ता सर हैं, वो बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। सबसे लास्ट में बेसिकली वो समअप भी करेंगे। तो ये सारे इश्यूज हमारे बीच में हैं, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे एक चीज जरूर ऐसा लगता है कि भारत का जो स्टेक है वो कभी भी अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा पॉलिटिकली नहीं था। कल्चरली वी वर कनेक्टेड विद ईच अदर, हमारा बहुत सारा इकोनॉमिक स्टेक वहां था। अफगानिस्तान की संसद हमने बनाई थी अभी और समर्पित की थी। इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे जो हम चला रहे थे वहां पर, और वो एक प्रकार से छूट गया है या फिलहाल स्टैंड स्टिल हो गया है। तो आने वाले समय में तालिबान भारत को किस प्रकार से ट्रीट करेगा, this has to be seen, this has to be in fact analyzed in a wider spectrum of the term international politics, as far as international politics and relations is concerned। तो मुझे लगता है ये सारे मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है, और भारत के साथ जो सबसे जो मुझे लग रहा आने वाले समय में जो सबसे बड़ा इशू बन सकता है वो कश्मीर में बन सकता है कि बिकॉज तालिबान इज जस्ट 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया और फ्रॉम कश्मीर। वो आने वाले समय में ये मुझे इसकी पूरी संभावना लगती है कि विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसर्जेंसी में इरप्ट वंस अगेन इन कश्मीर। तो इस पे हमें चौकन्ना रहना होगा, इस पे हमें इन सब चीजों को देखना होगा। तो बातें तो बहुत सारी है, हम लोग आगे भी बातें करेंगे, लेकिन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर आशीष शुक्ला फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी, और इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त इनका वर्क रहा है, और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान के डिफेंस के ऊपर इन्होंने काम किया है, और ये ICWA में भी थे इसके पहले, और इसके अलावा इन्होंने चाइना में पर भी काम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि टू स्टार्ट विद ऑल दिस एकेडमिक डिस्कशन, आशीष शुक्ला इज बेटर देन एवरीवन, और मैं आशीष शुक्ला जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने को अनम्यूट कर लें, और स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्पीकर के तौर पर एक पूरा का पूरा जो सुपर पावर का जो रोल रहा है कि हाउ डिड सुपर पावर, कैसे सुपर पावर ने, रसिया ने और अमेरिका ने किस प्रकार से अफगानिस्तान में अपने रोल को प्ले किया, बेटर वे में और वर्स वे में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या इसके रिपरकशंस आने वाले समय में हो सकते हैं। तो मैं इसी के साथ मैं सबसे पहले आशीष शुक्ला जी को, डॉक्टर आशीष शुक्ला जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी बात को रखेंगे, एंड काइंडली स्टिक विद योर टाइम। दिस इज 10:39। ओके, धन्यवाद सर। एम आई ऑडिबल? मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जब 5 मिनट रह जाएं तो मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि when I start speaking I forget the time, so I'll try to make sure that I finish in time, but that is my only request. When there is a 5 minute left, please give me a reminder. Thank you again. At the outset, let me thank Center for the Study of Society and Politics, especially Professor Anil Kumar Verma ji and Professor Sanjay Kumar ji for organizing this discussion and giving me an opportunity to share my thoughts and ideas with such an august gathering, although virtual. My association with Shodharthi, CSSP, and these two eminent professors goes back to my days in Banaras Hindu University when I was a master's student pursuing my PG in political science
back in 2007 to 9. And since then, this association has been continuing, and I would say that over the years, it has got strengthened. So once again, I thank the whole team of CSSP, especially Dr. Professor A.K. Verma, Professor Sanjay Kumarji, Dharmendra Srivastava, and Kamal Srivastava also, who have been engaging me in one way or the other. Otherwise, it was really not possible for people like me to be very active in participating various programs and discussions organized by CSSP. Now, I won't waste much of my time, and I will directly come to the point. And that the topic which I have been assigned is superpowers' role in Afghan crisis and its impact on India. There was one thing which I thought that I should do, because when you are the first speaker in a conference like this, you are also supposed to touch upon the broader contours of the conference so that other participants could take that forward during the day. And keeping that mind, usko dhyan mein rakhte hue, I have structured my presentation in 4 parts. 4 भागों में मैंने अपने वक्तव्य को विभाजित किया है. जो पहला भाग है वो ऐतिहासिक बैकग्राउंड के ऊपर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर है, एंड सेकेंड पार्ट इज अबाउट Russian and American interventions as well as withdrawals. And the third part is about interest of various outside players in Afghanistan. इसमें जैसे कि हमारा अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, भारत है और पाकिस्तान है. और लास्ट पार्ट जो है उसको मैं इस तरह से कह सकता हूं कि उसमें implications भारत के लिए क्या होंगे उसको मैं देखूंगा. तो to begin with the historical background, Afghanistan, as Professor Sanjay Kumar referred in the beginning, as a graveyard of empires. So Afghanistan has actually lived up to its infamous reputation of being the graveyard of empires. And it is worth noting that during the first Anglo-Afghan war, if I remember correctly, the years 1839 and 42, the British army suffered a humiliating defeat and miserably failed in its attempt to retain Kabul or capture Kabul in that way. In early 1842, British army was actually ordered to retreat from Kabul. And और आप समझिए कि हुआ क्या कि जब वो वापस लौट रहे थे, so deadly tribes अफगानिस्तान के जो माउंटेनियस पासेस थे, दर्रे थे, उनके ऊपर वो बैठे हुए थे, और उस ऊंचाई को उन्होंने अपना हथियार बनाया और उसकी वजह से उन्होंने they actually massacred the whole British force of around 16,000 soldiers as well as civilians. They were camp followers as well. So I think about 4,500 soldiers, and there were about 12,000 civilians who were part of that team. They were massacred brutally, except one person, one soldier who was a Scottish surgeon, I think, serving in the British Army at that point of time. His name was William Brydon. You can search about him on the internet as well. So William Brydon was covered in blood with several deep wounds and a slashed open skull, and who survived the onslaught and told his masters about the massacre. बहुत सारे विद्वान हैं अफगानिस्तान पे काम करने वाले जो कहते हैं कि वो जो विलियम ब्राइडन थे उनको जानबूझ करके छोड़ा गया था ताकि वो जाएं और अपने लोगों को, अपनी सरकार को, अपने ऑफिसर्स को बता सकें कि किस तरह से अफगान ट्राइब्स ने उनका कत्लेआम किया. Then, Soviet invasion, we all know, there's lot has been written, lot has been said, Soviet invasion 79 and 1989, Afghan tribes, along with other Mujahideen fighters and warlords, played an important role in driving out the Soviet Red Army from Afghan soil. And in their effort to defeat the Soviets, they received substantial support from Pakistan, America, Saudi Arabia, and other countries as well. It is now well known and documented that Pakistan's political security establishment played a very crucial role in turning Islamic zealots into a fierce militia which brought down the mighty Soviet empire to its knees. और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से अमेरिकन फंडिंग और अमेरिकन आर्म्स
जिसको कि एक एक रुपए को ऐसा कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया ने भी मैच किया था उस फंडिंग को। तो उस पैसे और उस आर्म्स को का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी और है ISI ने अफगान मुजाहिदीन को ट्रेन किया और उनके माध्यम से उन्होंने उस पूरे रीजन पे एक तरह से कंट्रोल भी रखा शुरू में, और बाद में रशियन आर्मी को वहां से वापस जाना पड़ा। और इसके साथ बहुत सारे लोग इसको होली वॉर कहते हैं, धार्मिक युद्ध कहते हैं। सो दिस सो कॉल्ड होली वॉर ended with the victory of Mujahideen, and Soviets left the territory after signing Geneva Accord. Right? So, and there is one thing which I would like to point out here about Pakistan. They had an eye on achieving strategic depth. What is strategic depth? You can very well know. You can understand. I think it's a military concept where if you don't have much territory to fall back, so you try to arrange that strategic depth with some arrangement with other countries. Like in Pakistan's case, Pakistan wants Afghanistan to play that role. So with an eye on achieving strategic depth in Afghanistan against India, Pakistan initially backed Gulbuddin Hekmatyar faction in the internal fighting in Afghanistan, but later it changed sides and helped Taliban capture Kabul. And if I remember correctly, it was General Nasirullah Babar, the interior minister during Benazir Bhutto's second tenure in office, who jumped into action and actively promoted Taliban militia. When Taliban established themselves in Kandahar in late 1994, and when it became evident that they were ready to capture power in Afghanistan, Pakistani establishment decided to provide all sorts of help to them openly. You know, Pakistani military officers were ordered to manage logistics and fuel supplies, and also to provide air support to the Taliban. General Babar, as you all know, created Afghan Trade Development Cell in the Interior Ministry, Home Ministry, which was tasked to coordinate the efforts of facilitating a trade route to Central Asia. But what was the reality? It was principally aimed to provide logistic support to the Taliban. Rest is history, you all know. I won't go back. I won't take much time into dwelling deep into this history. So American interventions. Americans, you all know, who had helped these Mujahideen fighters with arms, ammunition, and necessary finances against the Soviet Union, have also been forced to withdraw from Afghanistan. Right? And the 9/11 terror attack had brought Americans in direct confrontation with Taliban regime, and which resulted in global war on terror and Operation Enduring Freedom. And the net result of all this was that Americans launched an intervention in Afghanistan and Taliban were dislodged from power. There is an Afghan proverb which sometimes some Western analysts attach to Taliban as well, and they say, and this proverb goes like, "You have watches, we have time." Throughout the American intervention and their continued presence, this Afghan proverb kept motivating Taliban, who believed that there'll be a time when they would recapture Kabul. Many in the West, including in this region, laughed at such a proposition, but see what has happened right now before our eyes. They have actually proved it that they had time, but Americans had watches and they had time. Of late, we have seen the announcement of interim government, and they call it Islamic Emirate of Afghanistan. The new cabinet is composed of senior Taliban figures, and you would be surprised to know that all of them are male, and some of whom are notorious terrorists, as mentioned by Professor Kumar in the beginning. Mullah Muhammad Hassan Akhund, the acting prime minister, is on a UN blacklist. The interior minister, Sirajuddin Haqqani, is a specially designated global terrorist, and he carries a bounty of $10 million US, right? So this is the situation right now. Now, I would briefly touch upon the interest of various powers, various players in Afghanistan right now, and I'll begin with America first. Recently on 16th of August 2021, Joe Biden made a special remark about Afghanistan, and in that remark, he categorically stated, and I would like to quote him, I think, he said that we went to Afghanistan
almost 20 years ago with the clear goals: get those who attacked us on September 11 and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. This is something which we need to emphasize upon. It was never supposed to be creating unified centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing a terrorist attack on American homeland, and I have argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. And that is why I opposed surge when it was proposed in 2009 when I was vice president. And that is why, as president, I am adamant that we focus on the threats we face today in 2021, not yesterday's threat. So remember, this is the statement of American president. He is saying it very clearly that we don't have anything to do with counterinsurgency, nation building, or providing freedom and other rights to Afghan people. So one should be very, very clear. In international relations, we always say that you don't have to work on anything else, but you have to protect your own national interest. So in the end, whenever if Americans say that they are in this particular reason to promote democracy and freedom, so remember, they are not there to promote democracy and freedom. They are there to further their own national interest. Now coming back to Russia, present day Russia would like to see some sort of stability in Afghanistan so that it could actually safeguard its security and strategic interests. It has alliance responsibilities under CSTO, Collective Security Treaty Organization, and a rising level of violence makes Russia concerned about its spillover to Central Asia. अगर अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा वायलेंस हुई तो उसका स्पिल ओवर होगा सेंट्रल एशियन स्टेट में, जहां पे रशिया के सामने ट्रीटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी सुरक्षा करेगा, और इस सिचुएशन में रशिया को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसीलिए रशिया चाहता है कि कुछ स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में रहे, और यही वजह है कि रशिया अब जो है अफगानिस्तान को इंगेज कर रहा है। और और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अफगानिस्तान ने रशिया ने तालिबान को जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ट्रीट किया है, और अभी भी ऑफिशियली वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है रशिया में, लेकिन फिर भी रशियन डिप्लोमैट्स जो हैं उनको कह रहे हैं कि ये नॉर्मल गाइज हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कैपिटल अफगानिस्तान की कैपिटल जो है अब पहले से ज्यादा सेफ है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बात अगर आप करें तो वो कह रहे हैं कि तालिबान का जो टेक ओवर है वो एक रियलिटी है, और हमें उस रियलिटी के साथ वर्क करना पड़ेगा। नाउ कमिंग बैक टू चाइना, व्हाट इज चाइनीज इंटरेस्ट? अगर आप चाइना को देखें, थ्रू अ स्मॉल वाखा कॉरिडोर चाइना इज कनेक्टेड टू अफगानिस्तान and it is deeply concerned about the Uyghur problem in Xinjiang. Uyghur rebels जो हैं और बहुत सारे अदर जो सेशनिस्ट एलिमेंट हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका तालिबान के साथ कनेक्शन रहा है, हिस्ट्री में अलकायदा के साथ कनेक्शन रहा है, बहुत सारे पाकिस्तानी बेस जो आतंकवादी संगठन है उनके साथ कनेक्शन रहा है। तो पहली चीज जो चाइना चाहता है, वो चाइना तालिबान को ये परसुएट कर रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स को जो चीन के लिए जिनजियांग में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, उन एलिमेंट्स के साथ आप रिश्ते ना रखें, उन एलिमेंट्स को आप वहां से हटाएं, और आप हमें उनके खिलाफ एक्शन करने में हमारी मदद करें। अभी जुलाई में हाल ही में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने तालिबान का एक डेलीगेशन बुलाया था तियानजिन में, और वो डेलीगेशन जो था मुल्ला बरादर ने लीड किया था, और उस दौरान वांग यी ने कहा भी था कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है सॉरी, और जिसको कि सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि एक आतंकवादी संगठन है, और ये चाइना के राष्ट्रीय हितों पर एक खतरा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम चाहते हैं, यानी चाइना चाहता है कि तालिबान जो है, चाइना चाहता है कि तालिबान जो है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध न और एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें, ताकि जो है भविष्य में जो है चाइना के लिए ये कोई खतरा ना बन सके।
पाकिस्तान की बात अगर करें तो ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, geographical proximity, historical ties with Taliban, Pakistan is a very important player in Afghan imbroglio right now. Pakistan has the ability to play both constructive as well as destructive role in Afghanistan. However, historical experiences suggest that it is much more interested to serve its own interest at the cost of Afghan stability, peace, and development. Pakistan has three key interests in Afghanistan. Firstly, it aims to limit Indian presence. Secondly, it emphasizes on Pashtun-led government. You should read Taliban-led government, which would actually neutralize Pashtunistan issue and also provide the much needed strategic depth to it against India. And thirdly, 5 minutes. yes, sir, I'll conclude in 5 minutes. Yeah. And thirdly, it desperately needs some space in Afghanistan to maintain its strategic assets. You should read strategic assets as terrorists. India, many believe that Indian interests in Afghanistan are exactly opposite to that of Pakistan. हेलो सर, आप तीसरा पॉइंट बता दीजिए। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को मेंटेन करें, यानी अपने आतंकवादी संगठनों को वहां रखें और उसके माध्यम से हमारे लिए चुनौती पेश करें। ठीक है, मैनी बिलीव कि जो भारत का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है वो पाकिस्तान के अपोजिट है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ जब तालिबान पावर में थे। इंडिया वाज कंप्लीटली आउट ऑफ पिक्चर and actually supported Panjshir based Northern Alliance. But immediately after Taliban's defeat in 2001, India actually revived its relationship with Taliban, with Afghanistan, and pursued a proactive Afghanistan policy. और अगले एक दशक में अगर आप देखें तो भारत अफगानिस्तान में सबसे बड़े डोनर्स में से एक होकर के उभरा। और 2011 में जब भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया अफगानिस्तान के साथ, तो भारत का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था अफगानिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ा। इंडिया built the iconic parliament building in Kabul, funded the Salma Dam in Herat, and operationalized Chabahar port in Iran, and launched air freight corridors that saw over 1,000 flights carrying goods with, which were worth 216 million during 2017 and 2020. It also signed 5 agreements for reconstruction, construction of schools and roads in Afghanistan, which was supposed to be about $2.6 million. So, but in changed circumstances, अभी सिचुएशन बदल गई है। भारत का जो अभी का इंटरेस्ट है, ऑब्जेक्टिव है अफगानिस्तान में, वो ये है कि भारत चाहता है कि तालिबान अफगान की जो भूमि है, अफगान की जो टेरिटरी है, उसको पाकिस्तान या चाइना को भारत के खिलाफ ना इस्तेमाल करने दे। सेकेंडली, इंडिया चाहता है कि तालिबान हमें ये एश्योर करें कि वो हमारे आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का कोई मेडलिंग नहीं करेंगे, स्पेशली जैसे संजय कुमार सर ने कहा था कि कश्मीर में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरी बात जो है, वो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा गुडविल है अफगान लोगों के बीच में हमारे रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ, वो हमारा बना रहे। ठीक है, और अभी तक अगर आप देखें तो हमने 3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, उसके रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। तो इस गुडविल को मेंटेन करने के लिए भी हमें अपने बारे में सोचना पड़े। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया है। अगर आप अभी का डेवलपमेंट देखें इस रीजन का, you would realize that situation is not good at all for us. Had this not been the case, we would not have closed down our diplomatic missions so early. We wind up our diplomatic mission despite clear assurances from Taliban not to do that. India's decision to evacuate early was based on some intelligence input. Not many in India knew initially that our embassy officials and staff were escorted to Kabul airport by none other than the Taliban fighters themselves. And this was done after Indian embassy requested Taliban to do that. And given the chaos in Kabul, especially outside the airport, it took 3 kilometers journey, 5 hours. You can imagine what would have happened there. There are reports that India has started engaging Taliban, and it will continue to do so, both officially as well as unofficially. And in present circumstances, we do not have
any other choice but to engage Taliban to minimize our losses and further our national interest in future. The question which we must ask, I would raise some questions and then I'll close. The questions which we must ask ourselves is what we were doing as of now. Why did we rely on American umbrella to protect our interests in the region? Why did we not engage Taliban earlier, especially when a number of scholars who were working on Afghanistan was suggesting India to do that? And most importantly, why did we run away from Afghanistan at a time when our own people were struggling to get out of Afghanistan? Why? Why was this hurry? There are some scholars, some observers who say that when you make a bureaucrat your foreign minister, this is what you see in the end. So thank you very much. With these words, I would like to stop. I hope I haven't taken much of the time which was allotted to me. And if there are any question and answers, I would be happy to answer. And I'm sorry, really sorry, I spoke a lot. I spoke a lot in English. I was not supposed to speak in English at all in that way, but I'm really sorry. But आपके जो भी सवाल होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उसके आंसर हिंदी में दूं. धन्यवाद. थैंक यू डॉक्टर आशीष. क्योंकि आशीष जी ने यह बात कही है कि जो भी सवाल है तो आप लोग अपना मैसेज बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हैं और जो इंटरैक्टिव सेशन होगा उसमें आप चाहे अपना सवाल पूछ सकते हैं. सो वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन बाय यू एंड आई थिंक you have narrated the whole things regionally. How is it going to affect our foreign policy, the South Asian political scenario? So in that way, you have covered all the aspects of Afghanistan problem. We have with us very eminent academics plus military service experienced person, Colonel Vijay Chenji ji, and he is a doctorate in Sanskrit. After serving 40 years in army, he did his PhD in Sanskrit. Or basically, he has also established a research institute, IIRF, Indus India Research Foundation called, और ही इज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ IIRF. तो हमारे बीच में कर्नल विजय चेंजी साहब हैं. और चूंकि अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात की है, लेकिन जो मिलिट्री एस्पेक्ट है, यू हैव गॉट द वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इन इंडिया एंड अब्रॉड. सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल cornerstones, what could be the possible pointers regarding this Afghanistan crisis? So without delaying any time, we are already 3 minutes late. So sir, please have your time. Start. Okay, sir. Colonel Vijay Chenji, sir. First of all, namaskar and greetings to you all. I consider myself very honored to be in this very eminent company of panelists, and my special namaskar to Dr. A.K. Verma Sahab, who's heading the organization. I thank your organization and in particular Dr. Sanjay Kumar, whom I've known for a couple of years. It's very kind of him to have remembered me. Dr. Sanjay, I'll request you, I want to put up few slides so that they can cut down time. Sir. Okay, will you allow me to share, please? Okay, sir. Share. You share your slides. Yeah, it says it has been disabled. The participant host has disabled. Okay, sir. Now start sharing your slides, sir. Okay. Really? Is it working, sir? I haven't yet got your. No. I have changed the. Yeah. Are you able to see the? Yeah. Fine. Just give me 30 seconds. I'll organize myself. Yeah.
Once again, friends, good morning to you all. Without much ado, I'll straight away get on to the topic. Today, the topic that has been given to me is Afghanistan geopolitical overview and military analysis. The previous speaker, I think, is amply covered about the geopolitical thing. I don't want to go too much into it. And as far as the military analysis is concerned, this is one campaign where there was no war. So I really don't know what to say, because it was just a total surrender. I mean, there was not a shot fired, and an army on both sides, if you put together almost about 5 lakhs army, the war ended without without a whimper. Yeah. Now coming to the now we are all familiar with the current situation in Afghanistan. I'm sure we all have been watching so many channels, and in fact, there has been an overload on Afghanistan. The whole world media is engrossed and totally obsessed with this subject. All other news items have taken a backseat, relegated to the backseat. The whole world is today discussing about this. So I expect everyone to be fairly well informed and about this crisis. I will briefly touch upon the geopolitical situation just for a minute or two, then I'll go on to the military aspect. Now, as for the geopolitical situation is, it is still a little fuzzy, as the Americans say, little foggy. Things are not very clear. As far as the Russians are concerned, there seems to be now some new development between Russia and India last 2-3 days. And Russia has always been a trusted friend to us for the last 70 years. They bailed out on so many occasions in the United Nations Security Council. They vetoed on Kashmir. So, and even in 71 war, I remember I was traveling to Delhi, and that was the day they had signed the security deal which had been signed between India and at that time Soviet Union. And as far as United States is concerned, they are still wishy-washy. They're not very clear on one hand. Now everybody knows Taliban is an illegitimate child of both the US and Pakistan. So I think the US is in a sort of a dilemma, so there still talks about, in the garb of bailing out human crisis and other things, they still want to fund, they have to have deal with Taliban. How they are going to sit down across the table with Sirajuddin Haqqani, a known terrorist, on whose head they put a $5 million price, how they are going to negotiate, still it's not very clear. All others are watching, and so is India. I agree with the previous speaker that he's been too mild. He said, India is, what have we been doing? He's asked the question. I think we have just been sleeping. All that, there's too much of, doing others good in Afghanistan. We have invested a lot of our money and goodwill, and ultimately, all this has come to naught. I must credit Pakistan. Right now, they are one up in this game, and they have been working on it. All said and done, Pakistan has been working on it. They've had a few advantages, which I'll come to later. Now, coming to the military aspect itself, before that, I just want to take you back how Afghanistan was in the 70s. Now, if you look at this picture, you find this was what Afghanistan was in the 70s. I remember there was a film festival in Delhi. I was posted in Meerut at that time. And then I was looking after a prisoners of war camp. We had about 4,000 prisoners, Pakistani prisoners. So I had gone to this film festival, and there were a lot of these Afghanis were there. And they were so stylish and modern, and you know what it is. The only reason why I put out this picture is how things have changed in the last about 60 years. This was during the time of King Zahir Shah. As far as for my young scholars, this is the only sort of
the glamour part in the presentation. Don't look for anything beyond this. We straight away go on to the next one. अच्छा, अभी I'll slightly switch on to Hindi. I've been told that आप लोगों में से काफी जो है छात्र हैं हिंदी में सुनने का पसंद करेंगे. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं फिर भी एक प्रयास करूंगा. एंड आई कैन अश्योर यू, आपको आश्वासन दिला सकता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा आपको समझ आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक टेरेन है. टेरेन मतलब जो ये जमीनी इलाका है, इसको ये जो है किसी भी मिलिट्री स्टडी के लिए बहुत जरूरी है. अगर आप देखेंगे ये जो है चिनार लीफ का जो आकार में है, दिस इज अफगानिस्तान. अफगानिस्तान की जो है टोटल एरिया है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश मिला के जितना बनता है उतना है. इसका कहने का मतलब है ये छोटा सा देश नहीं है जैसे इजराइल है और बाकी छोटे छोटे भूटान है, नेपाल है. इसके काफी जो है स्क्वायर किलोमीटर का एरिया काफी है. और इसकी जो है बनावट और वॉट एवर द टेरेन, यू हैव द प्लेन्स. ये जो हल्के पीले रंग में दिखाया गया है, ये जो है मैदानी इलाका है. ये ब्राउन में है, ये छोटे पहाड़ है. छोटे मतलब ये भी जो है 8-10 हजार से लेकर 13-14 हजार तक. और जो सफेद में दिखाए गए हैं ये है बर्फ का. अभी इसमें देखेंगे अफगानिस्तान 6 देशों के साथ इनकी जो है पड़ोसी मुल्क हैं, इनके देश हैं. अगर बाएं से ऊपर से लिया जाए तुर्कमेनिस्तान, फिर ईरान, फिर पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ काफी लंबा चौड़ा बॉर्डर है उनका. और उसके बाद में चीन के साथ इनका बहुत छोटा सा, इधर आपको दिखाई भी नहीं देगा उतना जो है एक है. बाद में तजाकिस्तान है. तो एक 5-6 जो है एक कंट्रीज का बॉर्डर है अफगानिस्तान का. अफगानिस्तान का जो है जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है. हमारा केरल राज्य जो है उससे थोड़ा कम हो सकता है. और इतना बड़ा जो है इलाका और उतनी छोटी सी पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो डेंसिटी वाइज पॉपुलेशन और इसका रेशियो जो है बहुत बड़ा है. मतलब ये नंबर ऑफ पीपल टू द एरिया कंसर्न. इसका यहाँ का टेम्परेचर जो है आपको मैदानी इलाके में जो आ रहे हैं यहाँ अगले हमारे स्पीकर बताएंगे. इधर जो है सम ऑफ दीज एरियाज आर वेरी हॉट, 50 डिग्री तक चला जाता है. और द हाइट्स जहाँ की 20,000 24,000 तक है, बर्फीले इलाके जो दिखाया गया है माउंटेन्स, ये जो है आपको इट इज ऑलमोस्ट अप टू 20, I mean the temperature could go down to -20 degrees. तो एक काफी, एंड दिस प्लेन इलाका है, दिस इज लाइक हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट. Those of you who have gone to Ladakh, जिन्होंने लद्दाख और जो है ऊंचे एरियाज गए हैं, आपको वहाँ एक लैंडस्केप जो मिलेगा जो चंद्रमा पे दिखाते हैं उस प्रकार का है. और यहाँ के लोगों के बारे में तो बताई, इसके पहले बताया, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा. यहाँ जो है अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अफगानिस्तान एक डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छी भूमि है. मतलब जो भी अगर डिफेंस लड़ना चाहता है, ये एक कारण हो सकता है क्यों इससे पहले डॉक्टर संजय कुमार ने बताया था कभी ये जो है यहाँ रशियंस की हार हुई है, अभी अमेरिकन की हार हुई है, इसके पहले जो है ब्रिटिश की हार हुई है. सिर्फ एक महाराजा रंजीत सिंह ने जो है इनके ऊपर कब्जा किया था. तो उस समय जब पंजाब का ये था, उसके बाद में जब पंजाब का मतलब ये खत्म हो गया रूल, उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए. फिर ब्रिटिश ने कोशिश की यहाँ के ऊपर ये करने का. ब्रिटिश को हालांकि उन्होंने भी काफी टाइम के लिए रूल किया है, पर उनको बहुत मतलब नुकसान उठाना पड़ा है. सो दिस इज बेसिकली अ प्लेस फॉर. तो नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि इतना अगर स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव एरिया होते हुए कैसे जो है एक मतलब एक बगैर एक बुलेट फायर के हुए अपने आप को इन्होंने हथियार डाल दिए. इसका मतलब एक ही है कि ये
साजगाट जो बोलते हैं, एक सेटिंग थी, probably Americans and the Taliban. And 29th February 2020, most of you may be knowing, there is a secret deal between the US and Taliban. And the most shameful part of it was the Afghan government was not involved in that. And that was not known to anybody. और उसके appendices वगैरह जो बने थे, that gave the modality of how. कहीं से भी है. Yes. Anything? Sir, you just continue, sir. Okay. So in that secret deal, it had a number of appendices which nobody knew, including the American senators had no access to those documents. The main document the American senators knew, but the appendices which involved the troop deployment and what is the schedule of withdrawal, that was known only to the Taliban. Why the American White House administration gave it to Taliban and did not even allow the American, the senators to, it was kept in the basement of the Capitol Hill. It's all there in black and white. So that is a thing which is a question, which one. Now I'll straight away go on to, this was as soon as that captured Kabul. Now, the rest of the presentation, I've just got about 15. Dr. Sanjay, if you can just prompt me 5 minutes before, I can also wind up accordingly. Thank you. I have got 8 minutes. Yeah. Yes. Okay. Now I'm going to cover this in broadly under 5 heads. Terrain I've already finished. The intelligence failure, organizational and structural flaws, lack of strategy, and poor implementation and no planned withdrawal. Now, these are all the military aspects. It's going to take a long time, but I'll be very, very brief. First of all, the intelligence failure. Was there really an intelligence failure? The fact that this document exists, that there was a deal signed between the American president and the Taliban heads, the leaders, it itself shows that they knew about it. And the schedule was given to Taliban. And the reason why this, and it beats anybody's imagination. Why should the schedule of where your troops are and how it is going to be withdrawn was given to them? And the reason that has been now given is that so that the understanding was Pakistan, the Taliban will not attack them in those places on those days. Another thing which sort of defies all imagination is, now this is the areas of Taliban control in 2017. The areas which have been marked in red, if you see, these are all Taliban controlled areas. Now these are not outside Afghanistan. They're all in clusters. So either the American intelligence was so poor they did not know that these groups existed, or they just turned a blind eye. To me, it appears that Americans knew about this. Americans knew about all this presence of क्षमा चाहता हूँ, ये अमेरिका को पता था कि तालिबान के जो है कुछ एलिमेंट्स इन एरिया जो लाल में जो दिखाया गया है इसके अंदर 2007 में थे. अब इनका जो है इतना सारा उसीलिए उन्होंने क्या किया था, 2016 के बाद कोई इक्विपमेंट नहीं दिया. इन द एंड आई फ्लैश ए स्लाइड, मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि 2001 से 2016 तक कितना जो है अमेरिका ने सप्लाई किया था. नाउ दिस इज द अफगान बॉर्डर कंट्रोल. ये जो है आपके छोटे छोटे जो ब्राउन में दिखाई दे रहे हैं, ये सारा जो है बॉर्डर कंट्रोल है. इधर से जो इन्फिल्ट्रेशन होके आए थे. तो मेरा कहने का मतलब है ये जो है काबुल के ऊपर जो है 10 दिन के अंदर कोई कब्जा इतने बड़े मुल्क को नहीं कर सकता देश. अगर आप देखेंगे एक सिर्फ ऑपरेशन बर्बरसा करके हुआ था जो
जर्मन हिटलर ने रशिया के ऊपर आक्रमण किया था 1939 में, उस समय जो है 2000 किलोमीटर प्रिपेट मार्शेस में उनको कोई जो है 3-4 दिन तय कर लिया था उन्होंने वो जगह उनके टैंक्स वगैरह से। पर ये यहाँ भी वही हुआ है। अब देखेंगे तालिबान के पास ना उनके पास टैंक्स थे, ना इनके पास ऐसे ऑर्गेनाइज्ड जो है आर्मी थे, फिर भी उन्होंने अब इस इलाके से लेकर यहाँ तक 2000 किलोमीटर तक का बनता है, 1500-2000 किलोमीटर तक, 1800 किलोमीटर तक। कैसे जो है एक हफ्ते में इतना तय कर लें, जबकि इतने सारे जो बिल्टअप एरियाज हैं, इतने सारे टाउनशिप्स हैं, और इधर देखिए कितना डेंस एरिया है। तो इसका मतलब definitely there has been sort of hand in glove between both this. ये जो है आपको मैंने चेक पॉइंट दिखाए हैं। अब ये दिखाएंगे दिस इज हैपेंड ऑन 9 जुलाई। अब देखिए तालिबान कितना फैल चुका है। और आपको जुलाई के आखिरी में बाइडेन साहब मतलब व्हाइट हाउस का एक ये आता है, प्रवक्ता जो है वो कहते हैं कि हमारी असेसमेंट है कि काबुल को लेने के लिए 3 महीने लगेंगे तालिबान को, और जो है पूरे अफगानिस्तान को लेने के उसके बाद में और एक 6 महीने लगेंगे। इसका मतलब अगर सितंबर में विड्रॉ किया, दिसंबर तक जो है काबुल नहीं गिरेगा, फिर उसके बाद में मतलब जून जुलाई तक तो ये हो सकता है। पर फिर भी ये है 9 जुलाई, और 9 जुलाई को इधर देखिए, ये अफगानिस्तान का ये फेलियर नहीं तो क्या है, इतना ज्यादा जो है रेड एरियाज में जो है आ गया था उनको। और अमेरिका जो कि इतना आधुनिक देश है, इतने उनके पास सैटेलाइट्स है, उनके पास एक कहते हैं चींटी भी अगर कहीं आ जाए तो उनके पास फौरन कंप्यूटर में पता चल जाता है। और इतना, और पाकिस्तान का जो है ये तालिबान का स्ट्रेंथ रहा है कम से कम एक 40,000, जबकि अफगानिस्तान आर्मी का जो है 4 लाख के करीब, 3,80,000 और वॉट एवर इट इज। और पहाड़ों में ऐसे बताया जाता है कि अगर आप फायर करेंगे, अगर कोई चीज आप इलाके को आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो रेशियो 1:6 बनता है। मतलब अगर एक पलटन है, एक बटालियन है, अगर उसको आप कैप्चर करना चाहेंगे आपको कम से कम 2 ब्रिगेड के जो है ये करना पड़ता है। जबकि ये तो उल्टा हिसाब हुआ है, 40,000 लोगों ने जो है इतने बड़े पहाड़ी इलाके में जिनका जो डिफेंस था बगैर एक किया है। इसका मतलब जरूर जो है देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ अ डील। इंटेलिजेंस पोस्ट विड्रॉल व्हाट प्लान्स दिस थिंग वाइज, इनकी सैटेलाइट मॉनिटरिंग, सिग्नल इंटेलिजेंस अमेरिका के इतने हैं। अब I can't believe that, with so much of infiltration they had done and Americans did not know. There was no plan to say, there was no plan to protect security of men and material. अमेरिका ने एक प्लान भी नहीं किया था कि किस प्रकार जो है हम विड्रॉ हो जाएंगे तो हमारे पास इतने एसेट्स हैं, 15-20 हजार लोग उधर काम करते थे इनके लिए, इनके अपने खुद के लोग थे, और इन्होंने जो है आर्मी को विड्रॉ कर लिया। जुलाई में जो है सिर्फ 1,500 थे, और अगले दिन जो है जब उनको पता चला आ रहे हैं फिर और एक 3,000 लेके आए। तो ये कैसा इंटेलिजेंस है, क्या प्रकार का प्लानिंग है, हमें तो समझ में नहीं आता। अब इसके बारे में कुछ स्टडीज हो रही है। अब ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, अफगान आर्मी जो है जब शुरू में 2001 अमेरिका आया था तो अफगान आर्मी को उन्होंने just 1 minute sir, just 1 minute, yes sir, 1 or 2 minutes just, okay sir, okay, I'll quickly go through. You can have, उनका conventional army नहीं था और it was a loose combat teams, no clarity on US role, lack of objectivity. You may do that 1 minute apart from 5 minutes or it's over? almost over, yeah, almost over, 11:25. Okay, you just no, Sanjay ji, that would be unfair. Yeah. You have to rewind it 5 minutes, No, so sir, you can take 5 minutes. You can take. Thank you, sir. Thank you, sir. You're very graceful of you. Thank you so much. Yeah. Okay. There was no coordination between US official administration, US Army. देखिए, here about the withdrawal, since I won't go into the other parts, एक बात मैं बताना चाहता हूँ. There is a very famous withdrawal
of Dunkirk 1940 में हुआ था ये, and the British Expeditionary Force which were there for the protection of France against Germans, they had to withdraw, and they withdrew 4 lakh troops. That was the time Winston Churchill was the Prime Minister, and they withdrew. They suffered losses, but withdrawal is a very, very tough operation, and it's a planned operation. Imagine पहाड़ों में जो है आपको जो है you have about 500 vehicles, पहाड़ गिर गया है, खिसक गया है भूमि, और आपको रिवर्स करनी पड़े गाड़ी. So withdrawal is something like that, and the Britishers carried out a plan immaculately. They removed the non-essentials and unwanted people, and ultimately I'll show you some pictures of that. This is what you see, the long line of thing. And it was supposed to be a classic withdrawal in military operations, which Americans, they were there for 20 years with so much of intelligence. Now, this is the place where this withdrawal, the one you see in pink, ये जो है withdrawal मतलब फौज को पीछे खींचना, ये भी एक विधिवत अनुसार जो है प्लान किया जाता है. Now, what are the reasons for causes for Taliban military success? Excellent networking about Taliban groups, इनके war groups जो है. By the way, हम Taliban कहते हैं, it is not one identity. It is a mix of 14 groups. इनके आपस में, take my word, you can take it, put it on record, there will be a lot of internecine fights among themselves. Very important point, ideology and communication. Whatever we are talking, at the end of the day, it's an Islamic ideology that is sweeping in. We must accept this, much to the discomfort of some people who may not want to talk, but it's a reality. We are all seeing it. And Central Asia, this vacuum has been filled by this. West Asia is already there, and Taliban forms a very, this Afghanistan forms a very, very important nodal point around which it's going to be. And we have seen already, and as far as India is concerned, and their adherence to Quranic principles of war. This can be sort of, I'll rush through this. No fight, Kabul surrounded. There was no light, there was no leadership structure, and 80,000 Taliban soldiers captured, out of which 36 are the terrorists. US had lost this war in Doha itself, the day Trump had signed with this. You don't give it to a rival while your troops are still there, when your men are still there. And now this is one, sir, I request the chair to just give me 1 minute. Now this is what is a thing which not known to very many people. This is a very important document from 2003 to 2016. There has is all that equipment it was got. After that, Taliban did not get any equipment. So those of us who are saying they got the latest state of art, craft, and all this thing, it's not there. Whatever has left behind, some of them is of course definitely usable. The other thing, they don't have supply chains and maintenance and all. So with this, and this is what the situation today looks like. I'm sorry, I had to overshoot my time. Normally, I don't do it. Anyway, thank you very much. If there are any questions, I can take it on at the end, and when there is a question. Thank you once again to all for that. Thank you so much, sir. It was a wonderful presentation on your part. और मुझे लगता है कि तमाम विद्यार्थियों ने इस जरूर कुछ समझने की कोशिश की होगी कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं अफगानिस्तान के संबंध में वो कुछ और भी बयां करती हैं. और इनफैक्ट इफ आई मस्ट से आई वुड लाइक टू से लाइक दैट कि एक प्रकार से अमेरिका ने तालिबान को थाली में परोस कर यह विक्ट्री दी है. यहाँ से एक नई बहस भी शुरू होती है कि क्या अमेरिका के सुपर पावर के दिन अब खत्म हो चुके हैं और निर्विवाद रूप से क्या अमेरिका जो एक सुपर पावर स्टेटस था अब वो नहीं रहा. तो ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे कि
ब्रिटेन का सुपर पावर स्टेटस खत्म हो गया। इन 1991 यूएसएसआर का सुपर पावर स्टेटस खत्म हो गया और अब 2021 it has been finally stamped on the superpower status of United States of America. So should we think in terms of Chinese political or economic scenario of world politics? तो इसी भाव के साथ हमारे बीच में a very eminent person called सुनील पंत जी हैं। सुनील पंत जी, सर आप अपना स्क्रीन शेयर हटा लें सर। सुनील पंत जी हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में वो स्वयं यहाँ पर हैं and is still on board of several banks in अफगानिस्तान। और कल भी मेरी परसों शायद उनसे बात हुई थी, अभी भी वो वहाँ मतलब ऑनलाइन जुड़े हुए वहाँ के बैंकिंग सिस्टम में, चूंकि वो डायरेक्टर वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ गजनफर बैंक, तो वहाँ वो जुड़े हुए हैं और लगातार इकोनॉमी को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं और वो अभी भी जुड़े हुए हैं। तो ऑफ कोर्स ही स्टार्टेड हिज करियर इन एसबीआई एंड रिटायर्ड पर्सन, बट due to his caliber he rose to the mountainous height of in banking system। तो हमारे बीच में बड़ी खुशी है, मुझे पर्सनली मैं ओवरवेल्म्ड हूं मैं कि हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति हैं। और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे अफगानिस्तान और भारत और जो पूरा का पूरा साउथ एशिया है, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे साथ का एक मेंबर भी है, तो पूरे साउथ एशियन रीजन में अफगानिस्तान किस प्रकार के इकोनॉमिक प्रॉब्लम पोज कर रहा है या किस प्रकार के इकोनॉमिक कोऑपरेशन आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि भारत को अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ इकोनॉमिकली वो काफी नजदीकी जुड़ा हुआ था, लेकिन तालिबान सेकंड के बाद ये स्थिति एकदम से बदल गई है। तो भारत के क्या वहां पे स्टेक हैं, किस प्रकार से हैं, ये हमें समझना है। तो सुनील पंत जी हैं और ये तमाम देश दुनिया के तमाम बैंकिंग सिस्टम से आप जुड़े रहे हैं और तमाम बोर्ड में आप हैं। तो मेरा निवेदन आदरणीय सुनील पंत जी से है कि कृपया आप अपने व्यूज को यहाँ हमारे बीच में शेयर करने की कृपा करें। सुनील पंत जी। संजय जी स्क्रीन शेयर ऑफ करा दीजिए प्लीज। हाँ सर, कर्नल सर अपना स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑफ कर दीजिए सर। कैन वी डू ऑन इट? हाँ ठीक है, हो गया। हाँ हो गया सर। हाँ सुनील पंत सर। यस सर। थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने का एक मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। खासकर संजय जी का, और अभी वर्मा जी से भी बात हुई थी, डॉक्टर वर्मा से थोड़ी देर पहले। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो ये एक इनिशिएटिव लिया है, इसका इतना अच्छा वाइड रीचिंग रिस्पांस आया है। और इसका मेरे ख्याल से जो क्रेडिट जाता है वो शायद स्पीकर्स और उसमें पैनलिस्ट्स को कम जाता है, पर जो इस टॉपिक पे आजकल लोगों की एक जिज्ञासा है, जानने की एक उत्सुकता है, ये समझने की कि इसमें क्या हो सकता है, वो भी एक बहुत अहम इसको कंट्रीब्यूटर है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज अ प्लेजर एंड अ डिलाइट टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू, मैं अफगानिस्तान से कुछ 6.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ एज अ डायरेक्टर इन वन ऑफ देयर बैंक्स, एंड इट हैज बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। काफ़ी इसमें सीखने को मिला है, काफ़ी चीज़ें सोचने को मिली है, और कई तरह के जो प्रॉब्लम्स हम कभी सोच भी नहीं सकते थे हो सकते हैं, वो वहाँ पे होते हैं। 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा एक बैकग्राउंडर के तौर पर। सबसे पहले तो जो बात चली थी अभी दोहा में, अमेरिकन ने हार वैसे ही मान ली थी जिस टाइम पे अग्रीमेंट कर रहे थे, तो एक सही बात है ये, क्योंकि जैसे एक जर्मन मिलिट्री फिलोसोफर क्लॉजविट्ज ने कहा था, बैटल्स आर वन एंड लॉस्ट इन द माइंड्स ऑफ मैन। तो आप अपने लड़ाई जमीन पे नहीं हारते, उससे पहले आप अपने दिमाग में या अपने मोराल में हार जाते हैं। तो यही वहां पर भी हुआ है। मेरे ख्याल से अमेरिकन जो हैं वो एक लेवल ऑफ डेस्परेशन पे आ गए थे कि कैसे निकला जाए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के 2-3 कारण थे। एक तो ये था कि अमेरिकन ने देखा कि ये लड़ाई में चाहे उनकी तरफ से $2.5 ट्रिलियन, 2.3 to 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स का उनके इन्वेस्टमेंट हुआ है इस सिस्टम को बनाए रखने में, पर इसका जो फायदा हुआ है
वो बेसिकली एक तो अमेरिकन कॉरपोरेशंस को, अगर आप पिछले कुछ दिनों के जो लॉबिस्ट्स हैं और जो ग्रुप्स हैं अमेरिका में जिन्होंने अफगान विड्रॉल के खिलाफ अपनी आवाज रेज करी है, उसमें ज्यादातर जो है आप देखेंगे जो ये कमर्शियल इंटरेस्ट थे उनके लॉबिस्ट्स और उनके मेंबर्स थे, क्योंकि उनको एक तरह का बिल्कुल एक ब्लैंक चेक मिल गया था कि वो वहां से पैसा कैसे निकालें। हर चीज जो है ओवर प्राइस्ड थी। एक छोटा इसका जो एग्जांपल है, सिंस वी आर डीलिंग ऑन द फाइनेंशियल साइड, जिस टाइम पे इराक में भी इन लोगों ने इन्वेजन किया था और उस टाइम पे वहां पे हैलिबर्टन जैसी कंपनीज वहां पे गई थी जिनके पास ऑलमोस्ट टोटल मोनोपोली थी ऑन सप्लाईज, वहां पे इजीली 40% to 50% का मार्कअप्स होते थे। यहाँ पर भी जो है बहुत सारी चीजें जो है वो दुगने तिगने दामों पे सप्लाई हुई हैं, उनका कोई ट्रैक नहीं है, उनका कोई ऑडिट ट्रेल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भी काफी इस तरह की चीजें हुई हैं, जिसमें से एक इशू वो भी आता है कि जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय हुए थे जो उनको पेमेंट्स करे गए, उनका टोटल अकाउंटिंग नहीं है। वहाँ पे जो आर्मी में कहने को सोल्जर्स थे, जो इंडिया में कई जगह पे आप देखते हैं PWD या इसमें फेक मस्टर रोल्स होते हैं, वहां पे फौज के साथ ऐसा था कि वहां पे मस्टर रोल्स थे, लोगों को तनख्वाहें दी जानी थी या दी जा रही थी, पर उसका कोई वहां पे लेने वाला एक फिजिकल पर्सन वहां पे नहीं था। तो इस तरह से एक दो ये चीजें थी which was really creating a very difficult situation, and I think the American top leaders, POTUS, the president of the United States, at one point became aware of this, and they started from the time of Obama to exit from this place. चाहे ओबामा के टाइम पे again he was got around by the Pentagon और उन्होंने वहाँ पे एक सर्च कर दिया instead of withdrawal. अब बाइडेन जो है वो उस वाले माइंडसेट को लेके उसको पुश कर रहे हैं, पर उनका जो एग्जिट फिलॉसफी जो थी और जो एग्जिट प्रोसीजर था वो मेरे ख्याल से बहुत वेल वर्कड आउट नहीं था। दूसरी चीज एक सोचने की ये है कि मिलिट्री एक्टिविटी और इकोनॉमिक्स में एक बड़ा गहरा संबंध है। ये बात नेपोलियन ने भी कही थी, एन आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक। अगर आप आर्मी को विक्चुअलाइज उसको फीड नहीं कर सकते तो आर्मी कैसी भी अच्छी हो वो एक पॉइंट के आगे नहीं लड़ सकती। और यहाँ पे जो था इसका एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया था। आर्मी में टॉप लेवल पे इतनी साइफनिंग आउट और करप्शन था कि वो सारा पैसा निकल रहा था। इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे और जो ओवरनाइट मल्टी मिलियनेयर्स बन गए। पर ऐसे लोगों को देखते हुए वहां पे ये माना जा सकता है कि आर्मी का जो डिमोरलाइजेशन और इमीडिएट जो कोलैप्स हुआ है, इट वाज आल्सो बिकॉज पीपल वर नॉट गेटिंग देयर सैलरी। 6-6 महीने 1-1 साल से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली थी। खाने के तौर पे कई बार अगर वो लकी थे तो उनको एक बोरा आलू का पहुंचा दिया जाता था, उसके बाद दे वर टोल्ड टू मैनेज। तो कुछ तो उनमें से मराडर्स की तरह से लोकली लोगों से वसूली करने लग गए। आप ये मानिए कि कंधार से आपको अगर एक ट्रक सामान की ले जानी है काबुल तक, तो आपको वहां पे अगर आप तालिबान से डील करते हैं तो आपको $75 उनको प्रीमियम देना पड़ेगा। पर अगर आप आर्मी के भरोसे और वहां पे चेक पॉइंट्स के भरोसे रहेंगे तो आपको $150 से खरीद पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इसके अंदर पिल्फरेज, कितना ज्यादा हेमरेजिंग, कितने ज्यादा लीकेजेस थे। ये बात नहीं है कि खैर करप्शन सिर्फ अफगानिस्तान में है। हमारे यहाँ पर भी राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि जो पूरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें से 1 रुपए में से शायद 23 पैसा पहुंचता है नीचे। पर यहाँ पे क्योंकि इतना वास्ट ग्रुपिंग है, इतने सारे लोग हैं और इतना ज्यादा पैसा पंप किया जाता है, तो उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। वहां पे क्योंकि इतना कम था और इतना हेवी साइफनिंग था, इसलिए वहां पे एक फ्रस्ट्रेशन और एक लेवल ऑफ डेस्परेशन आने लग गया था। यहाँ तक कि जब ये टेक ओवर हुआ 15 तारीख को, उसके बाद मैंने वहां पे बैंक में बात करी थी, लोग कहते हैं कि देयर इज अ सेंस ऑफ रिलीफ बिकॉज 17-18 तारीख को कि वहां पे जो क्राइम था, चेन स्नैचिंग, वॉलेट स्नैचिंग, ये सब चीजें जो है बिल्कुल खत्म हो गई। और जब से पता लगा कि हक्कानी जो है ये वहां पे इंटीरियर के मिनिस्टर बने हैं, तब से क्राइम रेट हैज रियली गॉन डाउन। कई लोगों को इस बात की काफी खुशी है। और दूसरा, तालिबान हैज बीन रिपीटेडली सेइंग कि हम आपके जो प्राइवेट सेक्टर है उसको मदद करेंगे। तो छोटे दुकान वाले जो हैं, छोटे बिजनेस वाले जो हैं, उनको मदद करी जा रही है। बड़े जो हैं उनको देयर इज अ प्रॉब्लम, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, उनको अगर इम्पोर्ट्स करने हैं उसका पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। और आगे जाते हुए अगले 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, दिस विल बी अ मेजर क्राइसिस दैट अफगानिस्तान विल बी फेसिंग। Another thing that I wanted to say is that Afghanistan's economy is defined by its poverty. वहां पे इतनी
एक्सेसिव पॉवर्टी है कि अगर आप वहां पे ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन लेके भी चलें तो 48% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। और अगर आप जो जाते जाते अब्दुल गनी की गवर्नमेंट ने एक टेंटेटिव पॉवर्टी लाइन $2 पर डे के हिसाब से डिटरमिन करी थी, उसको अगर आप लेके चलें तो $2 पर डे इतना ज्यादा अमाउंट हो जाता है कि करीब 90% जो है अफगानिस्तान की पॉपुलेशन वो गरीबी की स्तर से नीचे आ जाती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि उस हालात में जब इतनी गरीबी है तो पीपल आर इन अ स्टेट ऑफ डेस्परेशन, उनके पास खोने को क्या है? खोने को कुछ नहीं है। इसलिए वो ये सारे एक्सट्रीमिस्ट मेजर्स जो हैं, वो ये सारे लड़ाई के मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं। आप ये भी देखेंगे कि पहले जो अफगानिस्तान में जो एम्पायर्स आई भी, चाहे सेल्यूकस की थी, चाहे उसके बाद मौर्यंस की थी, चाहे उसके बाद हिंदूशाही डायनेस्टीज थी, पर वो वहां पे ज्यादा चल नहीं पाई क्योंकि वहां पे जो लोकल जनरेशन ऑफ रेवेन्यू था वो इतना पुअर है बिकॉज ऑफ, जैसे आपने पिछले इसके डॉक्टर विजय के प्रेजेंटेशन में देखा, जो वहां पे जो टेरेन है वो ऐसी है कि उसके अंदर वेल्थ क्रिएशन इज एन इम्पॉसिबिलिटी। तो इसलिए वहां पे जो कॉन्क्वेस्ट भी जो हैं वो सिर्फ एक ट्रांजिटरी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल है, वो एक परमानेंट फॉर्म ऑफ रेजिडेंशियल कंट्रोल नहीं है। इसलिए वहां पे जितने भी लोग आए हैं उनको बाहर एक्सपैंड करना पड़ा है, चाहे गजानविद थे चाहे कोई भी थे, वो लोग यहाँ पे आए और उनके लिए इंडिया जो था वो एक नेक्स्ट पॉइंट बनता था जहां से वो एक्चुअली रेवेन्यू और रिसोर्सेज गैदर करके वापस ले जाते थे ताकि वो अपना एक आउटपोस्ट वहां पे अफगानिस्तान में, गजनी में या और ऐसी जगहों पे मेंटेन कर सकें। तो ये बात सोचने की है कि वो हिस्टोरिकली वो जो एरिया है इट हैज बीन अ वेरी पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया। वहां पे दूर दूर फैले हुए जो वैलीज हैं जिनमें थोड़ा बहुत इरिगेशन है, वहां पे जाके कुछ गांव बसे हैं, वहां पे जो है ट्राइबल लॉयल्टीज बनी हैं क्योंकि लोगों का आपस में इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए वहां पे जो इंडिविजुअल ग्रुप्स की जो लॉयल्टी है इट इज मच मोर देन एनी काइंड ऑफ अ नेशनल फ्रेमवर्क और अ रीजनल फ्रेमवर्क। इसलिए वहां पे जो एक कहावत है जो कहते हैं मी अगेंस्ट माई ब्रदर, मी एंड माई ब्रदर अगेंस्ट माई कजन, मी एंड माई ब्रदर एंड माई कजन अगेंस्ट द आउटसाइडर। तो इस तरह का एक वहां पे सिस्टम बन गया है। तो वहां पे ट्राइबल लॉयल्टीज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई, और वो ट्राइबल लॉयल्टीज जो हैं इनको जो गवर्न करते हैं वहां पे एक बेसिकली 3 टियर स्ट्रक्चर है जो उसको गवर्न करता है, विच इज दी मुल्ला, जो मौलवी हैं, क्योंकि ही इज ऑफन द ओनली एजुकेटेड पर्सन इन दैट एरिया। जो वहाँ के जो विलेज एल्डर हैं, जो कि नॉर्मली वहाँ के जो विलेज हेड हैं वो है, और एक उनका काउंसिल बनाते हैं, वो अपना जिरगा बनाते हैं वहाँ पे, जिसका एक डिस्कशन के लिए, शोरा या जिरगा जो भी आप बोलना चाहें, वो वहाँ पे डिस्कशन के लिए एक विलेज काउंसिल टाइप का है। तो नॉर्मली जो है ये सारा इसके बीच में वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, पर इसके अंदर बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जिसके अंदर एक पुराना वहाँ पे ट्रेडिशन है विच इज नोन एज पख्तून वाली, विच इज कि दुश्मनी होते हुए भी अगर आप किसी पख्तून के पास जाते हैं और उससे अगर आप मदद की गुहार करते हैं तो वो आपको डिनाई नहीं करेगा। जब तक आप उसकी छत के नीचे हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, हो सकता है आप बाहर निकले तो वो आपको गोली भी मार दे, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ ट्रेडिशनल support for any kind of a person who seeks your support, assistance, वो एक बहुत गहरा वहाँ पे वो है इशू। और इसकी वजह से भी ये जो तालिबान के लोग जो थे when they were moving between places, उनको एक सपोर्ट और एक उनको असिस्टेंस मिल जाती। Second thing is I'm still on the political track, but please stop me when I've got about, as other speakers were saying, about 5 minutes before I come to the economic track. And the reason I'm talking about the political track is because, जैसे Adam Smith ने कहा था, it is the political economy. Economy and politics cannot be divorced. जो economic forces हैं, they may shape politics, पर जो political forces हैं, वो economic forces को shape करते हैं। इसलिए ideologies जो हैं, वो इतनी important हो जाती है। इसलिए communism जैसी चीज जो है, वो चलती है क्योंकि वो एक ideologically based एक political approach है, और capitalism जो है, वो भी चलता है क्योंकि वो इकोनॉमिकली बेस्ड पॉलिटिकल अप्रोच है। सो इसलिए आपको ये देखना है इस कॉन्टेक्स्ट में कि यहाँ पे क्या चीज जो थी वो एप्लीकेबल थी। तो दोनों को डिवोर्स करना और अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डाल के देखना, आई डोंट थिंक इज अ गुड आइडिया, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द अमेरिकन्स आल्सो। जो अमेरिकन्स आए, अब वो जो भी कहें कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इट वाज
counter terrorism, not counter insurgency. But at a given point, इसके बीच का जो distinction है वो निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि one spills on into the other, and therefore it becomes very difficult to say कि यहाँ पे मेरा counter insurgency operation खत्म होगा क्योंकि मैं यहाँ से counter terrorism शुरू करूँगा. वो दोनों जो है एक दूसरे पे feed करते हैं और एक दूसरे को support करते हैं. इसके अंदर एक चीज और भी सोचने की ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे contradictions आ जाते हैं, वो क्या है? वो है system of governance के ऊपर. अगर हम बाहर से आके एक इसके ऊपर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को इम्पोज करना शुरू करते हैं, which can be either through political means or economic means, we find that it will not work unless it is aligned with the local ethos. वहाँ पे local ethos क्या है? Local ethos does not tolerate interference from somebody जो अपने को एक लेवल ऊंचा मान के वो उनको नीचे डिक्टेट करने की कोशिश करता है. यहाँ पे कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ये भी नोटिस किया होगा जिस टाइम पे दोहा में ये सब डिस्कशंस चल रहे थे, जो तालिबान थे, they would take a break and they would consult the constituents and then come back and make a final statement to Mr. Khalil साहब. तो ये भी एक सोचने की बात है कि वो जो है उसमें ऐसा नहीं था कि वहां पे मुल्ला बरादर जो है उनको एक सिंगल पॉइंट नेगोशिएटिंग बॉडी बना के उनको सारी अथॉरिटी भी दे दी गई. He had to go back and consult. ये कंसल्टेटिव फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद अमेरिकन ने जो अपनी टॉप डाउन डेमोक्रेसी का जो सिस्टम बनाने की कोशिश करी उसमें वो फेल हो गया. अर्बन एरियाज में कुछ हद तक चल सका, जिसकी वजह से वहां पे आपने देखा कि वहां पे विमेन्स एम्पावरमेंट, विमेन्स राइट्स, ये सब चीजें आई. अब आती है बात कि इस हालत में व्हाट इज इट दैट दिस गवर्नमेंट हैज इनहेरिटेड इकोनॉमिकली, क्योंकि मैंने जैसे बताया इकोनॉमिक फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो पॉलिटिकल फोर्सेस को भी फ्रेम कर सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल फोर्सेस का भी अपना रोल है. पर ये जो यहाँ पे इकोनॉमिक फोर्सेस हैं वो बेसिकली क्या है? वो एक है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, पॉवर्टी. पॉवर्टी इज अ ग्रेट ड्राइवर. वो आपको ड्राइव कर सकता है एंड इट कैन टेक यू इनटू एक्सट्रीम्स ऑफ वायलेंस, इट कैन टेक यू इनटू एक्सट्रीम्स ऑफ व्हाट शुड आई से सेल्फ हेल्प, इट कैन टेक यू इनटू एक्सट्रीम्स ऑफ सेल्फ बिल्डिंग. यहाँ पे क्या हुआ है? इट हैज पुश्ड पीपल इनटू एक्सट्रीम्स ऑफ सेल्फ वायलेंस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर गाइड, और वो जो है एक फैक्टर रहा है विच इज अ फेलियर. इसलिए वहां पे जो पॉवर्टी है दैट इज समथिंग दैट विल हैव टू बी टैकल्ड. अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो पॉवर्टी के वहां पे लेवल्स हैं दे आर आल्सो एसेंटुएटेड बाय द फैक्ट कि वहां पे जो पॉवर्टी एमिलियोरेशन के लिए जो वो हो सकते थे विंग्स, वो वहां पे बहुत इफेक्टिव नहीं है. वहां पे मुश्किल से 12 बैंक्स हैं जिनका जो कवरेज है वो बहुत ही नॉमिनल है. 250 के करीब की ब्रांचेस हैं टोटल अफगानिस्तान में. आपने देखा कितना वाइड स्प्रेड है. दो यहाँ के हिंदुस्तान के प्रांत जो हैं जैसे यूपी और मध्य प्रदेश को मिला के, राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिला के, और दोनों काफी बड़े हैं, उसको मिला के उसमें सिर्फ 250 के करीब ब्रांचेस हैं बैंक्स की. तो इसलिए अगर आपको एक सोशल चेंज बैंक्स के थ्रू लाना है, जैसे इंडिया में करा गया था 1968-69 के बाद, जब सोशलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था, सोशल कंट्रोल बैंक्स पे आया था, बाद में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था, वो वहां पे करने से कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. दूसरा फैक्टर ये भी है कि वहां पे मुश्किल से 10% जो पॉपुलेशन है उसके पास बैंक अकाउंट है. उसमें से मुश्किल से 3.8% पॉपुलेशन जो है वो विमेन है. सो ओनली 3.8% ऑफ द विमेन हैव बैंक अकाउंट्स, ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन हैज बैंक अकाउंट्स. सो अगेन यूजिंग बैंक्स टू बी एबल टू कट थ्रू करप्शन, जैसे यहाँ पे किया गया डीबीटी और इसके थ्रू, वो वहां पे पॉसिबल ही नहीं होगा. मोबाइल फोन यूजेज हैज इंक्रीज्ड. मोबाइल फोन यूजेज इज अबाउट 70%, पर वो डिपेंड करता है कि उसकी कनेक्टिविटी कितनी इफेक्टिव हो पाती है. अभी तक वहां पे जो थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी है, तिसलात, और वहां पे एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर है रोहन, उनकी वजह से रोशन, इनकी वजह से थोड़ी बहुत है, पर ये इतनी इफेक्टिव नहीं है. और बीच में जो तालिबान था उसका ये एक रेवेन्यू गैदरिंग फंक्शन था कि वो जो उनके टेलीकम्युनिकेशन टावर्स थे उनको वो थ्रेटन करता था या उड़ा देता था जब तक कि आप उसको उसके लिए प्रोटेक्शन मनी ना दें, जिसकी वजह से वो भी डिस्टर्ब रही है सर्विसेज. आज की तारीख में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप उसका जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है अफगान गवर्नमेंट का वो देखें तो 80% ऑफ द एक्सपेंडिचर वाज बीइंग मेट, इसका मुझे पता नहीं, और वाज बीइंग मेट आउट ऑफ ग्रांट, एड एंड इनवर्ड रेमिटेंसेस बाय वे ऑफ सैलरीज
that were being paid. तो जो वहाँ पे सैलरीज आ रही थी लोकल कंपोनेंट में अफगानी में for the NATO troops and for others, that and payments to the contractors for local services and for the local component of their salaries वो roughly 20% के करीब contribute कर रही थी. और ये जो था आपका जो aid और grant ये सब मिला के it was adding up to about 80% of the total revenue required for a sustained operation of the Afghan government. आज की तारीख में एक तो इस पे क्लैम्प डाउन हो गया है, एड फ्लोज जो है वो बंद हो गए हैं, जो कमिटेड फंड्स भी थे अंडर अफगान रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड जो कि एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड था यूएन मेंबर्स का, वो फ्रीज कर दिया गया है, उससे भी पैसा नहीं आ रहा. अभी जो आईएमएफ ने अपना रिवाइज किया था एलोकेशन ऑफ फंड्स जो एसडीआरस का ऑन द बेसिस ऑफ द कोविड नेसेसिटीज, उसमें अफगानिस्तान का शेयर बनता था इक्वलेंट टू $450 बिलियन जो कि फ्रीज कर दिया गया है, तो वो उनको नहीं मिलेगा. तीसरा जो है जो अफगानिस्तान में अभी तक जो रेवेन्यू आ रहा था फ्रॉम अदर सोर्सेज अब वो बैन हो जाएगा, क्योंकि अब अगर वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहेंगे तो वो पॉपी का जो रेवेन्यू है, जो उसका ओपिएट्स का जो रेवेन्यू है थ्रू स्मगलिंग एंड नारकोटिक्स, वो अब वो नहीं का अपना उसमें ऑफिशियली अपनी अकाउंटिंग में ले सकते हैं. वो रफली 1.6 बिलियन से ज्यादा था. इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% of the opium production or poppy based production, narcotics production in the world was flowing from Afghanistan. तो अफगानिस्तान का ये एक बड़ा मेजर वो था रेवेन्यू फॉर्म. और तालिबान जो था क्योंकि वो उसमें से एक बड़ा एक टैक्स के फॉर्म में एक चंक रखता था, एक प्रोटेक्शन मनी के फॉर्म पे एक चंक रखता था, वो भी बंद हो जाएगा. तीसरा जो था स्मगलिंग ऑफ मिनरल्स टू पाकिस्तान, जिसके अंदर जिप्सम, इसके अंदर आयरन ओर, कोल, ये सबका स्मगलिंग था. अब वो देखना पड़ेगा. अगर वो अब ऑफिशियल उसमें लेके आते हैं और उसको अबव द लाइन उसको दिखाते हैं तो वो एक रेवेन्यू. थैंक यू. Okay. So you know now you can see that there are a variety of challenges. और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो उनका जो रिजर्व्स जो थे, जिसमें से अबाउट $7.2 बिलियन के कैश रिजर्व्स थे, और बाकी जो था वो गोल्ड के फॉर्म में था और एसडीआरस के फॉर्म में था, वो रिजर्व भी सीज हो गया, तो उनको वो नहीं मिलेगा. तीसरा जो दूसरे बैंक्स हैं, बाहर के जो बैंक्स हैं जिनके साथ बड़े लिमिटेड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशंस थे, वो भी अब बंद हो गए. जो बैंक्स वहाँ पे लोकली थे जिनका पैसा वहाँ पे इन्वेस्टेड है, अभी देयर इज लैक ऑफ श्योरिटी कि वो पैसा वापस निकाल पाएंगे कि नहीं. So that is again going to be a problem. And on top of that, now you have to see what is there in the economy. एक तो continuing drought है. 2018 से लेके वहाँ पे अफगानिस्तान पे ड्राउट चल रही है. आप लोगों को याद होगा कि 2019 में इंडिया ने 75,000 टन्स ऑफ व्हीट गिफ्ट किया था अफगानिस्तान को टू टाइड ओवर देयर फूड स्कैर्सिटी. आज की तारीख में दिस डज नॉट अपीयर टू बी वेरी वेरी पॉसिबल, क्योंकि एक तो एक्सेस पॉइंट्स कम है, दूसरा अगर भेजना भी है तो नाउ यू हैव टू सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ whether you are recognizing the government and sending the money, who will distribute this food grain, how will the medicines that are required also to be sent because of the rising incidence of COVID. In fact, अफगानिस्तान में जो कोविड का जो इम्पैक्ट था वो 3-4 महीने पहले से ही इंटेंसिफाई करने लग गया, एंड दैट अगेन इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. टॉप्ड विद दैट कि पहले जो अबाउट लास्ट ईयर 2.5 लाख के करीब वहां पे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे, वो अब जो है बढ़ के अबाउट 5.8 लाख हो गए. और एक्सपेक्टेड ये है कि अगर ये सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं आए तो वो 10 लाख तक पहुंच सकते हैं. और मोस्ट ऑफ देम विल कॉन्ग्रीगेट इन काबुल. काबुल में सड़कों के किनारे, पेवमेंट्स पे, पार्क्स में लोग रह रहे हैं विदाउट शेल्टर. पीने का पानी नहीं है, ये आज हालत है. और अगर काबुल के पास आज की तारीख में वो भी नहीं होता है फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल, तो वहां पे ब्लैकआउट्स भी शुरू होंगे क्योंकि 80% ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी इज इंपोर्टेड. So you can see that it is heading into a very dire state. On the other side, unemployment levels are rising. जो youth जो है वहाँ पे, उसमें unemployment levels are officially supposed to be around 70%. बाकी कितना है, थोड़ा जो कहते हैं disguised unemployment है, वो भी कितना है वो मालूम नहीं है. So that is something that we need to get thinking about.
And therefore, I think what we need to do is start looking at making a distinction between Taliban government and the people of Afghanistan. I think India can take a lead in this because India has that kind of ability to reach to the grassroots and should be able to look at it from that angle and therefore be able to work out financial models whereby हम लोग जो वहाँ पे aid and assistance and even financial assistance to the ground level Afghan people can somehow be maintained even if we bypass the Taliban. Last I would like to say is there is also an acute shortage of currency. आज की तारीख में बैंक्स के पास करेंसी नोट्स नहीं है. Economy which is a cash based economy is today suffering क्योंकि कैश नहीं है. अगर आपके पास कभी कोई फोटोग्राफ्स आए तो आप देखेंगे बैंक्स के बाहर लाइन लगी हुई है लोगों की जो जैसे हमारे यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे थी उससे भी खतरनाक और भयानक लगती. तो आप ये देखें कि आज की तारीख में with all these things happening, Afghanistan is a challenge. Afghanistan has a spillover effect into Iran, into Pakistan, into Central Asia, and because of the support that the Pakistan army has enforced out there, ISI का कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग है तालिबान के ऊपर कि जो गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन ISI ने डिले करवाया और अभी जाके उन्होंने उसको शुरू करवाया है. आज की तारीख में उसका होना था इनॉग्रेशन पर उसको उन्होंने डेफर कर दिया है because I think it was coinciding with 9/11 और थोड़ा इमोशनल ज्यादा बढ़ जाते तो वो उसको डेफर हो गया है. But with all that you have to consider कि Pakistan is achieving its strategic depth at what cost, and I don't think the Afghans will remain blind to this. उनको ये चीज नजर आएगी, वो देखेंगे, वो भी सोचने वाले बुद्धिजीवी हैं. वहां पर भी लोग बाग बहुत सोचते हैं और जो अफगानिस्तान में नहीं सोचते वो अफगानीज जो बाहर हैं वो सोचते हैं. तभी आप अफगानिस्तान में भी चाहे इतना रिप्रेशन इतना कंट्रोल है, आप वहां पे डेमोन्स्ट्रेशंस देख रहे हैं, काबुल में, हेरात में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, मजार शरीफ में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, पर वो अभी आपको नजर नहीं आए क्योंकि वहां पे प्रेस भी कंट्रोल है, लोग डरे हुए हैं. पर लेट अस सी, एक पॉइंट के बाद फिर डर खत्म हो जाता है. So let's see how it goes on. It has tremendous ramifications, and India with an 80% GDP share in the SAARC GDP has a responsibility. चाहे लोग उसको अभी acknowledge करें ना करें, but I think we are aware of that responsibility. We are aware of the fact that we have deep connections, as was also said earlier, with the Afghan people, maybe not with the government, but with the people. And I think that is something that we will use to sustain their hopes, and that is what we will use to sustain our interests. So thank you very much. It's been a privilege being here. I hope I have been able to maintain my time limits. Right? Thanks. Excellent, sir. Excellent. Excellent. स्क्रीन शेयर किन्होंने कर दिया? हाँ, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें. हेलो, ये स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें प्लीज. पन सर, मतलब बेहतरीन आपका एक एनालिसिस और प्रेजेंटेशन, और मैं कह सकता हूं कि दिस वाज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, एंड परहैप्स यू आर द ओनली one in the panel that is basically grounded in Kabul. और आपका जो वास्ट एक्सपीरियंस है जो 6-7 सालों का, वो आज हमें इस वेबिनार में देखने को मिला है और बहुत ही वंडरफुल. मैं तो आई वाज रियली एंजॉयिंग योर लेक्चर लाइक एनीथिंग. इसके बाद हमारे बीच में प्रोफेसर गोपा कुमार साहब हैं, और इसके पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, ये 2 बातें बहुत जरूरी है. प्रोफेसर गोपा कुमार साहब एक्स वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के हैं और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं. उनके बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे जर्नल्स, किताब और बहुत सारे उनको ऑनररी अवार्ड्स और तमाम सारे स्कॉलरशिप फेलोशिप भी उनको मिल चुका है. इंडो कैनेडियन और फुलब्राइट और तमाम सारे स्कॉलरशिप से उनको नवाजा जा चुका है. तो बिफोर इनको बुलाने से पहले ये 2 बातें जो मुझे लगता कहना बहुत जरूरी है कि जो जिस इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात अभी पंत सर ने कही थी, तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन के मिनरल रिसोर्सेज हैं, और
ये क्या क्या हो रहा है? Yes, Sanjay ji, somebody ACER is sharing his screen. प्लीज ऑफ कर दें ACER जो भी है। आप सर होस्ट है, आप वहां से स्टॉप कर दीजिए उनके में जाके। क्या चीज कहाँ से? आप उनके जहाँ से म्यूट होता है ना उनका, वहीं पे जाएंगे। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, स्टॉप प्रेजेंटेशन कर दीजिए उनको। अच्छा 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 अच्छा, वन मैन कर देता है ना? ये क्यों ऐसा हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा, बंद नहीं हो रहा। मुझे होस्ट कर दीजिए, मैं देखता हूँ, मैं बंद करता हूँ। अच्छा अच्छा, स्टॉप पार्टिसिपेंट शेयरिंग। हाँ, हो गया ना? हाँ हो गया हाँ सर हो। तो अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन का रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है, मिनरल्स हैं वहां पे। बट इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज है, अमेरिका ने उसे एक प्रकार से मना कर दिया देने के लिए, जो अफगानिस्तान का था। ये ठीक बात है कि तालिबान को हम लोग मान्यता दें न दें या एक कॉशियस अप्रोच रखें, ये तमाम सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। बट हाउ विल अफगानिस्तान मूव ऑन विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ मीनिंगफुल पेनी और रिसोर्सेस? ये कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज से कैसे निपटा जाए, कैसे समझा जाए, और फॉरेन पॉलिसी के जो सारे ऑप्शंस हैं भारत के समक्ष, जो साउथ एशिया में है, जो अमेरिका के पास, चाइना के पास है। चाइना और पाकिस्तान ने तो ओपनली एक बार तालिबान के साथ खड़ा या न्यू रेजिम के साथ खड़ा, और चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि उनको वह फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग शायद ओपन सेशन में बात करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रोफेसर गोपाल कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि सर प्लीज आप स्टार्ट करें सर। Good afternoon, everybody. Thank you, Dr. Varmaji, our Sanjay Kumar, yes, sir. And all the fellow panelists. It was very good listening to all of you. My focus will be on how the Taliban regime is going to impact upon India's foreign policy and vice versa, particularly on strategic and geopolitical aspects. This day is very significant to the whole global community, September 11, because 20 years ago, we had the direct impact of global terrorism. Although India, through multilateral meetings, had highlighted the rise of terrorism, particularly in South Asia, in many of our conclaves and conferences, the Western powers did not take it very seriously. As we know, that even in 80s, we had terrorism in India. So we had highlighted those things, but until Americans had the distaste of it, this day, 2 decades ago, they started admitting the rise of and experience of global terrorism, and straight away Afghanistan came into public focus. Much had been said about what happened, particularly after 1979. India became a soft power as far as Afghanistan was concerned during the last 2 decades. Sri Pandhu was referring about the kind of support we had made. We are the 5th biggest aid donor for Afghanistan, and our aid and support came in 3 different ways. One, of course, in the form of building infrastructure, roads, bridges, schools, parliament. Second, by way of supporting them for educational attainments. And even we had provided special space for Afghanistan in our Indian Council for Cultural Relations program for admitting Afghan students in Indian universities. So for the Afghan people, India is respected, but that will not be sufficient for us to moderate our foreign policy, because unlike
what we believe that soft power can achieve many things. As far as Afghanistan is concerned, the shots are called not just by Taliban, but by a host of powers, including China, Pakistan, Russia, Iran, and of course, Tajikistan, even Turkey, Egypt, and now with the exit of United States. Until then, United States was also a part of this game. India had given critical human and physical infrastructure, but we now realize that things are in jeopardy. We had invested no less than $3 billion during the last 2 decades. So what to do now? With so much of investment we had made, and also the geopolitical challenges and strategic challenges frowning upon us, what kind of policy changes that we require at the West Asian level and also at the Central Asian level? As we know very well, political science students, that foreign policy is nothing but the extension of domestic policy. Perhaps last year, American President Trump also made a reference that domestic policy is foreign policy. Maybe true for America, but for us, foreign policy is certainly an extension of domestic policy. But Indian foreign policy face security risk at 2 counts. Number 1, the possibility of Taliban promoting terrorism against India, even in Kashmir. Some of the references had already come to us, and some reactions had come from the militants in Kashmir as a reciprocity to Taliban. Our past experience with Afghanistan was also negative, at least during the last 2 decades. China promoted Afghanistan for different reasons, because Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Toiba, and other kinds of terrorist groups, they can very well complicate India's counterinsurgency operations. And this will definitely have an impact in Kashmir, and where all possibility of ISI, Pakistan, supporting Taliban in Kashmir can be visualized, can be expected. The second aspect where our foreign policy is at security risk is that China's Belt and Road Initiative into Afghanistan. Of course, we know very well that Pakistan connected POK, Pakistan Occupied Kashmir, to the BRI, Belt and Road Initiative. But China itself has a stake with Afghanistan, because there is a narrow border connecting China and Afghanistan at what we call Wakhan Corridor. Not only because of the BRI, China has other aims also, because we know that China has a problem with the Uyghur population in Xinjiang province. So they don't want to ensure that Taliban support this Xinjiang Muslims, Uyghur population. So that is one concern for China. And China certainly, as an emerging superpower, is interested in exploiting Afghanistan's mineral resources. Afghanistan has vast copper deposits, nickel, and other materials. So for a manufacturing giant like China, Afghanistan is a great source of attraction. At the same time, Taliban needs foreign investment to meet all their financial risk. On the other side, although we have very good Indo-American relations now, the departure of America had left a great gap, and this also affects our security infrastructure. Last month, 31st August 2021, is remarkable in a different way. Like 31st December 1991 marked the end of Soviet hegemony and the global affairs. Advocates of power game theory argue that
31st August 2021 represented the decline of America as a superpower. It may be a military power, it may be an economic power, but its lone superpower status had gone, and also it left disgraced from Afghan soil. Before that, as we know very well, there was Doha conference. Practically, even the Doha conference, America left Afghanistan, and Taliban knew this very well. Luckily, on 31st August 2021 for India, we were made a part of the debate and discussion, and the Taliban representative participated in the Indian embassy discussion, where our ambassador Mithal highlighted issues on safety and security of the return of Indian nationals who were stranded in Afghanistan, and also the Afghan minorities. As you know, there were Sikh Afghans, Hindu Afghans, Christian Afghans. So they also need a passage. So we were able to raise our concern and get an assurance that Afghan soil should not be used for anti-Indian activities or even for terrorism. How far this is going to stand, we do not know, but we already had made a point. Until then, we never had a dialogue with Taliban. That was a sad thing of it. A critic on India's foreign policy like Farid Zakaria criticized India's passive approach towards Afghanistan. He believes that India should have engaged Iran, China over Taliban to protect India's interest. And he says that our foreign policy towards Afghanistan was not very forward-looking. Because our external environment also, we need some control, if not absolute control. Because otherwise our own national interest would be in peril. So India is concerned whether this will affect Indo-US relations. Probably with that, we adopted almost a neutral stand when the earlier Afghan government was collapsing like a pack of cards. To prevent the spilling of terrorists to Indian soil, I think India must work not only with Taliban, but also with Iran, Russia, China, and certainly the elephant in the room, Pakistan. So dialogue is important. And some people believe that there is a bifurcation between good Taliban and bad Taliban. Taliban require some change not because Taliban has changed, but the world has changed. So with this kind of changes that is happening, India should have the opportunity. Already in the minds of Afghans, we have a positive support because of our soft power cultivation and our investment on infrastructure on various levels. But of course, the last 20 years, we were not just soft power, we had our own concerns. We wanted to ensure that Islam shall not fall into the hands of militia, so that we could ensure that Afghan will serve as a bulwark against Islamic militancy. We knew very well, even earlier government, Manmohan Singh government and others also knew very well that an unstable Afghanistan with the Taliban would destabilize South Asia. This was known to us and this was part of it, and that is why probably we extended considerable support in terms of finance and infrastructural support. But in Doha, earlier in 2020, India did not emerge as a tactical collaborative partner on an equal footing with China, and we never brokered any kind of peace in this process. So critics say that we did not have a strategic autonomy in Afghanistan now because we were a little reluctant to deal. And the big question before the Indian foreign policy experts is whether this reluctance is going to be costly for India. So we should moderate ourselves, and from our calculated indifference, we need to embrace strategic engagement. But of course, this should not be at the cost of compromising with our ideology. We can definitely
enter into an open-ended manner, because in international politics, real politics consideration is very important. So there is scope for a strategic realignment, but very narrow, between China, India, and Pakistan, because now United States had left the scene. It is between China, India, and Pakistan, although we know very well that Pakistan and China are our traditional rivals, but there is still a narrow but a vital room for engagement, strategic realignment. And this will also help India to support the poor refugees and humanitarian aid, which can be strengthened further. So we should realize our limitation now, not because our foreign policy failed, but some of the factors were beyond our control. And we are now set to lose our influence in Afghanistan, our investment, etc. You know very well that Afghanistan is a landlocked region, south and east covered by Pakistan, west by Iran, and north by Tajikistan, Uzbekistan, and other countries, plus the narrow corridor to China. So it's a landlocked country, and Pakistan, throughout its recent 2 decades or more than 2 decades history, its concern was that India should not engage militarily in Afghanistan. To that extent, Pakistan succeeded. And that is why they supported Taliban right from 1979 onwards. And as a result of which, India could not protect its soft power interests in the region. And how we can regain our influence is a very big challenge. Now I come to the geopolitical aspect. So far I have been addressing on the strategic aspect. So we do have a lack of communication with Taliban, and this would in turn intensify Indo-Pakistan rivalry in the Afghanistan talks. So at the stage of re-strengthening our relationship, economic reconstruction, geostrategically and geopolitically, India should join the Troika talks. The Troika include, as of now, China, Iran, and Pakistan. And we should also join this Troika into a 4 group 1, so that India's stakes can also be raised now, not just limit to Pakistan, Iran, and China. Integration of Gulf into India's regional security calculus has now become a reality. Earlier, we know very well that we had some security concern in West Asia, but more than that, our human security aspects were important. But now, regional security calculus with Gulf is going to be permanent. And at least there are 3 countries where we can somehow depend upon in West Asia. They are United Arab Emirates, Saudi Arabia, and Iran, because they are all threatened by the rise of religious extremism in Taliban. So we should catch up on that. I will come to this issue of Iran also further a little later, because these 3 countries have challenges of Taliban's peculiar militarism, which can affect their industrial and economic progress. And that is where the security infrastructure in West Asia is a geopolitical advantage for India. And that is where we should cultivate with Iran, UAE, and Saudi Arabia. Of course, Afghanistan geostrategically is very much part of our calculus, because it is rich in mineral resources. Geographically, it is a gateway for India to South Asia, Central Asia, and West Asia. So for South Asia, West Asia, and Central Asia, Afghan remains a strong gateway. And that is where we cannot ignore Afghanistan, irrespective of the regime there. I mentioned about Iran, but we already had a very good alignment and
economic support we had extended to Iran on Chabahar port, and we had supported this, but unfortunately that this intention is now getting blocked with Taliban, because our intention for the relationship with Iran on Chabahar port was to promote our trade links, and this could also facilitate our trade links with Central Asian states, including Afghanistan. But the victory of Taliban now pose a big challenge, because whether we can proceed with the Chabahar port in future is also a big question. And moreover, Taliban knew very well that India has its leaning towards United States, and this also had embraced Iran a little, because we were depending on Iran oil also. So both for trade and economic considerations, we need to work with Iran as well as with Afghanistan. So this is going to be the geopolitical issue. Again, there is also a question whether the opium trade and drugs will boost Taliban further, and by creating an alignment between Pakistan and Taliban further. This AFPAC relationship, Afghanistan-Pakistan relationship, could go further by the militancy and also by the extension of opium trade and drug trade. So what brings Pakistan and Taliban could be opium trade, drugs, besides the facility that Taliban is not a homogeneous group, it is heterogeneous, divided. It has its own terror groups who have links with Lashkar-e-Toiba and other terrorist groups, including the Haqqani network in Pakistan. Sir, 5 minutes more. Yeah, with the ISI also. Yeah. So when you consider these factors, the terrorist links that Pakistan could encourage with Afghanistan, it raises fundamental questions to India's foreign policy. And another geopolitical aspect where China embraces us is through the Belt and Road Initiative. BRI, Belt and Road Initiative, where Pakistan and Afghanistan have interest with China, again brings another kind of challenge. So given all these complex issues, India's foreign policy has to become much more active, to engage with. Our dilemma is that whether Taliban is going to be institutional or is it going to be dynamic in nature and continues a warlike militant group. If they are going to be positive and if they are going to take up constitutional means, and definitely India can negotiate. Already the last 31st August, the Doha meeting in Qatar, we had brought the representative of Taliban to our Indian embassy, and we started engaging with them. But geostrategically, we cannot ignore the role of China and Iran, and Pakistan is inevitable. So let us engage Taliban, but it all depends whether Taliban is going to be, continues to be the same Taliban, or is going to be a kind of an institutionalized one. And look at the way Afghanistan collapsed, and look at the manner in which the Afghan regular army became mercenaries to the Taliban, and how a 400,000 army fell to a 65,000 Taliban army. It raises fundamental questions. And if Taliban wanted to run their country, and they have to align with the neighbors, and India is not that a distant neighbor, because our relationship, geographically we are not connected. And our foreign policy has to concentrate upon the challenges focused by the informed by the ex-governments and the right of Taliban. And let us see how we are going to engage not only Taliban in this context, but also Iran, Pakistan, and China. Thank you. Questions and answers. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. किन्हीं की आवाज आ रही है, म्यूट कर लें सभी लोग. Thank you very much, sir.
It was a wonderful presentation on your part. And now the session is open for all participants. और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर जितेंद्र नारायण जी दरभंगा से ये भी जुड़े हुए हैं और आप भी शायद कुछ कहना चाहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मुद्दे मेरे ख्याल से बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। मिलिट्री एस्पेक्ट पे किया, जियो पॉलिटिक्स पे किया, फॉरेन पॉलिसी पे किया और ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन एक जो चीज है जो मुझे लगता है कि इस ओपन सेशन को एक आधार दे सकता है कि बाइडेन ने जिस प्रकार की एक जल्दबाजी दिखाई अपने सैनिकों को वापस बुलाने में, लेकिन साथ ही साथ बाइडेन ने एक स्पीच में उन्होंने क्लियर किया है कि व्हाट इज और व्हाट कुड बी द फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने 5 पॉइंट में फ्यूचर यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन पॉलिसी को इन्यूमरेट किया है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि चाइना एंड रशिया will be the focus of US foreign policy. Yeah, this is the first point. जो सेकेंड पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइबर सिक्योरिटी इज ए न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर, सो मस्ट बी गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस, प्राइम ऑफ अटेंशन देना है। साइबर सिक्योरिटी, इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट समझ रहा है कि अब जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, जिस प्रकार से अभी तक वॉर चलता रहा, अब शायद उसके जरिए हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो साइबर जो तकनीक है उसके जरिए एक नई वॉरफेयर की तकनीक मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स डेवलप कर रही है और उसके आधार पर फॉरेन पॉलिसी, फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इस पे आगे बढ़ेगी। और जो थर्ड वन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका काउंटर टेररिज्म प्रोजेक्ट विल नॉट बी परसूड वाया बूट्स। बूट्स का मतलब कि सैनिकों को भेजकर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ आर्मी जो है, जो हम भेजते हैं, अब उसके जरिए हम काउंटर टेररिज्म की बात हम नहीं करेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और इसकी जगह हम अनमैन्ड ड्रोन्स को हम डिप्लॉय करेंगे और उसके जरिए हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं। दैट मीन्स America is still regarding the new regime or the new shift in Afghanistan as a terrorist prone regime. तो एक तो यह चीज है। और फोर्थ वन ये है कि नेशन मेकिंग और डेमोक्रेसी बिल्डिंग will be the will remain the prime focus of United States foreign policy. और फिफ्थ वन ये है कि ह्यूमन राइट्स का जो एजेंडा है इसको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं और यह भी हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि जो डोर इज स्टिल ओपन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स टू इंटरफेयर इन अफगानिस्तान अफेयर, नॉट बाय मिलिट्री मीन्स, बाय एनी अदर मीन्स। तो इस नोट के साथ मैं आज का सेशन ओपन करता हूं फॉर एवरी पार्टिसिपेंट। जिन्हें भी बोलना है 5 मिनट के लिए समय है, तो शायद पहले हैंड रेज कर दे जिन्हें भी बोलना है। हमारे बीच में प्रोफेसर सुधीर कुमार जी हैं आजमगढ़ से, ये भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, प्रोफेसर जितेंद्र नारायण सर कुछ बोलना चाहते हैं। सर प्लीज। सर नमस्कार। I am not only privileged, but really it is a matter of privilege and at the same time opportunity to learn something very important and relevant on the issue of Taliban. सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं प्रोफेसर ए.के. वर्मा साहब, और आपने हमको मौका दिया। भाई संजय जी, 2-3 चीजें हैं, जितनी बातें कही गई हैं सच बात कहते हैं कि मैं तो वैसे इंटरनेशनल लॉ का विद्यार्थी रहा, लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी में मेरी रुचि रही। हम बहुत भाग्यशाली हैं आप जैसे मित्रों को पाकर, और लंबा एसोसिएशन रहा प्रोफेसर ए.के. वर्मा साहब से, ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। और एक रिसर्चर के नाते हमको नहीं लगता है कि कोई शायद दूसरा
जिनको मैं बहुत करीब से जानता हूं, जिनके साथ मेरा एसोसिएशन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम लिखना प्रारंभ किए थे तो वो यूपी जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के एडिटर थे। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है, उनका बड़प्पन है कि हमको दोस्त मानते हैं, उनके हम दोस्त हैं। और जिन लोगों का समायोजन आपने किया इस अवसर पर, संजय जी, आप लोगों को हम बहुत बधाई देते हैं। 2-3 बातें मुझको कहनी है। जहां से प्रारंभ किया था प्रोफेसर ए के वर्मा भाई ने, कि वास्तव में गांधारी की याद आती है, लेकिन साथ साथ जो उनके भाई शकुनी थे उसकी भी याद आती है। 2-3 चीजें हैं, जितनी बातें कही गई हैं, 2-3 कंसर्न है। एक तो हमारा इकोनॉमिक कंसर्न है, दूसरा पूरी दुनिया का, दूसरा हम लोग कहते हैं टेररिज्म। तो टेररिज्म की आइडियोलॉजी भी एक बहुत बड़ा खतरा है, जहां से वो स्रोत है। और उसके वजह से हिंदुस्तान की जो स्थिति है महाभारत के समय थी, वही स्थिति करीब करीब हिंदुस्तान की अभी बनी हुई मुझको दिखाई पड़ रही है। और जो हमारी संस्कृति थी उस पर ही चोट करने की वो केवल महाभारत में ही था, वो संस्कृति की भी लड़ाई थी। वो दोनों सिंबल थे। और हिंदुस्तान के लिए मैं जैसा समझता हूँ कि इसकी सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, और सिक्योरिटी के लिए दूसरे पर हम डिपेंड भी नहीं कर सकते हैं, और उसकी तैयारी हो रही है, ये अच्छी बात है। तो हमको किसी मुगालते में नहीं आना है, सिक्योरिटी हमारा कंसर्न है। दूसरी बात है, जहां तक कि हमारा 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, तमाम चीजें हैं, तो अर्थ हिंदुस्तान में महत्वपूर्ण रहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ये धरती रही है। अर्थ का इंपॉर्टेंस रहा है, लेकिन दर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा है, और देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा है। कुछ बातें लड़ाकू की गई, कुछ जो मिजाज है उसकी की गई, तो हिंदुस्तान का मिजाज सबसे अलग रहा है। और हिंदुस्तान के सैनिकों के बारे में कहा जाता है कि शायद दुनिया में जो मोरल है इसका क्यों सबसे ऊंचा है, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसी धरती है जहाँ की माँ दूध पिलाती है, और वक्त आता है तो कहती है जाओ इसी दिन के लिए तुमको मैंने दूध पिलाया था। यहाँ की बहन जो है वो राखी बांधती है और कहती है कि जाओ देश की रक्षा करो। यहाँ जौहर की परंपरा रही है, तो इसलिए उसमें कहीं कभी न कमी रही है, और उसको और आगे लेकर के चलना है। दूसरी बात यह है कि जो सिनेरियो पैदा हुआ है उसमें डिप्लोमेसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और हम समझते हैं कि डिप्लोमेसी में चाणक्य की धरती ये रही है, डिप्लोमेसी हम समझते हैं, और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल है। हम अभी चूंकि बाहर में थोड़ा है, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं। एक्सपर्ट्स लोग हैं, जिस तरह की फाइनेंस की बात की गई, बैंकिंग की बात की गई, दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड थैंक्स अ लॉट। आपने हमको समय दिया, समय भी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार पुनः आप लोगों। थैंक यू सर। हमारे बीच में प्रोफेसर सुधीर कुमार है। सुधीर सर, सर आप कुछ कहना चाहते थे? सुधीर खरे सर। और हमारे बीच में बनारस से डॉक्टर अलका रानी गुप्ता हैं। सुधीर सर, मेरी आवाज जा रही है आपके, पहुंच रही है? सुन नहीं पा रहे। खैर, जिन्हें और कोई सवाल पूछना हमारे पैनलिस्ट से अपना हैंड रेज करें। मैं 5 मिनट का पूरा मौका है आपके पास, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी गुरु जी को लेकर चलिएगा। जी बताएं, कौन बोलना चाहते हैं? हाँ हेलो। मदान साहब हैं क्या? हाँ, मैं ही एक सवाल पूछता हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं पूछ सकता हूँ क्या? वर्मा सर, मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। वर्मा सर। सर मैं ये कह रहा था, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, तो वहां से भी हम सवाल ले सकते हैं। ठीक है, तो वहां से पंकज आप बताएं कौन सा सवाल है, ले लिया जाए। हाँ बताएं। हाँ एक मिनट सर। हाँ पंकज बताएंगे जी। हाँ एक मिनट दीजिए। एक सवाल तो ये है, पटेल है एक, जहाँ लाइव स्ट्रीम हो रहा है वहां पूछा है कि सर क्या तालिबान जम्मू एंड कश्मीर मैटर पर इंटरफेयर करेगा? ये सवाल किनसे पूछा गया? उन्होंने नाम भी लिखा है, स्नेहा पटेल ने वैसे पूछा है, लेकिन किससे पूछा ये नहीं है। अच्छा,
तो इस पे जो भी हेलो जवाब सर। देना चाहिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मुझे एक सवाल करना है। हाँ करें। सर, माई सेल्फ डॉक्टर के.एच. वासनिक, जी। गवर्नमेंट विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, अमरावती, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर मैं। या तो नाइस ऑफ यू। हाँ सर, तो सबसे पहले सभी को साधुवाद। बहुत अच्छे समय में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर आपने संगोष्ठी का आयोजन किया, इसलिए आपको सभी को साधुवाद। किंतु मेरा सवाल ये है सर कि अफगानिस्तान में जो भी हालात है, तालिबान ने जो किया है, तालिबान ने अपने पूर्ण अंडर में लिया है, इस संदर्भ में अमेरिका ने बहुत जल्दी वहां से अपने सैनिकों को अमेरिका बुलाया है। तो इन बदलते हुए परिस्थितियों में भारत अभी खुलकर अपनी भूमिका नहीं बता रहा है। ना तो वो डायरेक्ट तालिबान के समर्थन में आ रहा और ना ही उसके विरोध में आ रहा है। तो ये जो वर्तमान में जो पॉलिसी है, ये ऐसी ही रहेगी कि इसमें कौन सी न कौन सी भूमिका है, या तो समर्थन या तो विरोध। इस संदर्भ में भारत को अपनी भूमिका को स्पष्ट करना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में मैं डॉक्टर वर्मा जी से चाहूंगा कि वो इस पर अपनी बात रखे। ये भी बात सही है कि हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताल्लुकात अफगानिस्तान से बहुत अच्छे रहे महाभारत काल से लेकर। फिर भी अभी के बदलते संदर्भ में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए सर, प्लीज। वर्मा सर आपसे ये सवाल है। हाँ, वर्मा साहब से सवाल है। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रही है सर, कुछ। हाँ सर, माई सेल्फ डॉक्टर वासनिक, अमरावती, महाराष्ट्र। सर, सवाल यह है वर्मा साहब से कि हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने उनके साथ अच्छी ही वार्तालाप करने का प्रयास किया है। लेकिन अभी जो तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में जो हाल और हालात है, इन संदर्भ में भारत खुलकर ना तो विरोध कर पा रहा है और ना तो खुलकर समर्थन कर पा रहा है। जैसी पाकिस्तान, जैसी चाइना और रूस खुलकर तालिबान के साथ है और ये मानते हैं कि 1948 से लेकर अभी तक चाइना हमें काउंटर अटैक करने के लिए पाकिस्तान का साथ ले रहा है। तो ये बात बिल्कुल साफ है, सुथरी है कि कभी भी चीन भारत के पक्ष में नहीं आ सकता। तो इस परिप्रेक्ष्य में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए अफगानिस्तान को लेकर? ठीक, वर्मा सर। जी सर। आप सर, वर्मा सर, आपकी सर की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज में प्रॉब्लम। जब तक वर्मा सर जुड़े, मैं आशीष शुक्ला जी से निवेदन करूंगा। आशीष शुक्ला जी, आप इस पे तब तक हाँ डाल जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। Am I audible? हाँ। अच्छा, असल में मैंने देखा चैट बॉक्स में कुछ सवाल मेरे लिए हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वहां से शुरू करूं, बाकी दूसरे सवाल भी मैं दूसरे सवालों पर भी मैं आऊंगा। तो एक सवाल पूछा है संभवतः राजवीर सिंह ने, और उनका प्रश्न भी मैं पढ़ देता हूं। मेरा प्रश्न आशीष शुक्ला जी से है। और हाँ, प्रश्न ये है कि भारत की लुका छिपी की नीति क्या भारत को एक सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठित होने में बाधा तो नहीं? क्या भारत को अफगानिस्तान पर प्रोएक्टिव नीति नहीं अपनानी चाहिए? ओके, तो दो सवाल है बेसिकली इसमें। एक सवाल है कि भारत की सुपर पावर बनने की जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको कहाँ तक इससे प्रभाव पड़े, कहाँ तक धक्का लगेगा। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमने एक प्रोवर्ब, एक रशियन प्रोवर्ब है, पर्शियन प्रोवर्ब है बेसिकली, उसमें कहते हैं कि दिल्ली हुनूस दिल्ली दूरस्त, कहते हैं उसका मतलब है कि दिल्ली बड़ी दूर है। तो जब आप सुपर पावर की बात करते हैं तो पहले समझिए आप खड़े कहाँ हैं। आप सुपर पावर क्या हवा में बनेंगे? सुपर पावर आप कैसे बनेंगे? क्या पोजीशन है आपकी, यानी भारत की क्या पोजीशन है? एज एन एकेडमिक मैं उसको क्रिटिकली देखता हूँ। हमें उसके लिए बहुत इमोशनल नहीं होना चाहिए कि हमें विश्व गुरु बनना है, हमें बहुत बड़ी पावर बनना है, दैट इज ओके। लेकिन रियलिटी क्या है?
तो कैसे आप सुपर पावर बनते हैं? अगर मैं पावर के तीन अवयव अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, वैसे पावर के बहुत सारे अवयव हैं, तो एक अवयव अगर मैं ले लूं आर्थिक शक्ति, एक अवयव मैं ले लेता हूं चलिए मिलिट्री पावर जो है आपकी वो ले लेता हूं, और एक अवयव जो अक्सर हम भारतीय बात करते हैं सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो ये इन तीन अवयवों के आधार पे पहले हम देखें कि ये डिस्टरबेंस है थोड़ा सा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें, सॉरी, कहीं से डिस्टरबेंस। आशीष अनम्यूट हो जाइए अब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तीन चीजों के आधार पर हम देखते हैं कि पहले हम खड़े कहाँ हैं, फिर हमें जाना कहाँ है। पहला इकोनॉमिक, चलिए हम देखते हैं कि अगर हम आज की इकोनॉमिक स्थिति को देखें पूरे वर्ल्ड की, तो भारत की जो स्थिति है वो हम पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। अगर हम देखें टॉप पर अमेरिका है, उसकी जीडीपी अगर ट्रिलियन में देखें तो 20.49, लगभग 20.5 ट्रिलियन की उसकी अर्थव्यवस्था है। दूसरे नंबर पर उसका कंपटीटर चीन है, जिसकी अर्थव्यवस्था 13.4 ट्रिलियन है, लगभग 13.5। उसके बाद तीसरे नंबर पर जापान है, आपका हमारा दोस्त भी है, 4.97 ट्रिलियन उसकी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद जर्मनी है चौथे नंबर पर, उसकी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है, यूके है, उसकी अर्थव्यवस्था 2.83 ट्रिलियन है। उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस की अर्थव्यवस्था 2.78 ट्रिलियन है। अब अंत में अगर 7वें नंबर पे हम देखें, 7वें पायदान पे हम हैं, हमारी अर्थव्यवस्था 2.72 ट्रिलियन है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि 2.72 ट्रिलियन से 20.49 ट्रिलियन तक पहुंचने में क्या वक्त लगेगा। और आप ये भी सोच लीजिए कि अमेरिकन का डिक्लाइन हो रहा है, आपका राइज हो रहा है, फिर भी कुछ समय लगेगा ना। तो अभी दिल्ली दूर है इकोनॉमी के हिसाब से, हमारी उतनी पावर नहीं है। और अगर आप अपने साउथ एशिया में ही देखिए, चीन ने जिस तरह से साउथ एशिया में हमें इकोनॉमिक क्षेत्र में मार्जिनलाइज करने की कोशिश की है, वो बड़ा सवाल है। आप देखिए पाकिस्तान को चीन ने एंगेज किया है, श्रीलंका को चीन ने एंगेज किया है, और ये भी देखिए उसने कितना इन्वेस्ट किया है, बांग्लादेश में कितना इन्वेस्ट किया है चीन ने, नेपाल में कितना इन्वेस्ट किया है, और हमारी सिचुएशन देख लीजिए। ठीक है, तो हमें इन चीजों पर बड़ी बड़ी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, इमोशनली अटैच ना हो। अब दूसरी चीज आती है कि हमारी मिलिट्री पावर में हमारी क्या स्थिति है। तो एक नंबर पर जहां तक मैं जानता हूं अभी भी अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है। उसका जो एनुअल बजट है मिलिट्री का वो $601 बिलियन है हर साल का, और जो एक्टिव फ्रंट लाइन पर्सनल है उसके कम से कम 14 लाख हैं। उसके पास लगभग 9,000 टैंक्स हैं, और लगभग 14,000 एयरक्राफ्ट हैं, 72 सबमरीन। दूसरे नंबर पर रशिया आता है, उसका एनुअल बजट मिलिट्री का 84.5 बिलियन। एक्टिव पर्सनल जो हैं वो लगभग 8 लाख हैं, 7,66,000 समथिंग, लगभग 8 लाख मान लेता हूं मैं। उनके पास जो टैंक्स हैं वो 15,398, लगभग 15,500 टैंक, 15,400 टैंक हैं। टोटल एयरक्राफ्ट उनके पास है 3,429, सबमरीन है 55। तीसरे नंबर पर चाइना है, बजट है $216 बिलियन। एक्टिव पर्सनल जो है उसके मतलब 2,33,000 से ज्यादा है, 2.5 नहीं और कुछ ज्यादा है, मतलब उसके नहीं एक्टिव पर्सनल उसके लगभग 20 लाख से ज्यादा है, संभवतः 23,33,000 है। टैंक उनके पास 9,150 है। टोटल एयरक्राफ्ट 2,860 है, सबमरीन 67 है। चौथे नंबर पर जापान है, बजट है उसका $41.5 बिलियन। एक्टिव पर्सनल उसके हैं 2,47,173। टैंक उनके पास है 678। टोटल एयरक्राफ्ट 1,613, सबमरीन है 16। 5वें नंबर पर हम हैं भारत, जिसका बजट है 50 बिलियन। एक्टिव पर्सनल की बात करेंगे आप तो 13,25,000 एक्टिव पर्सनल है, 6,04,064 टैंक है हमारे पास,
1900 एयरक्राफ्ट हैं और 15 सबमरीन हैं। अब आप यहाँ पर फिर से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी क्या पोजीशन है मिलिट्री पावर के रूप में पूरे वर्ल्ड में, और हमारी पोजीशन के साथ साथ हमें टॉप पोजीशन के और हमारी पोजीशन के बीच में गैप कितना है, उस गैप को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद एक जो सॉफ्ट पावर का हमेशा हम बात करते हैं, अक्सर हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि सॉफ्ट पावर भारत की बहुत अच्छी है, भारत को बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में और भारत की मूल्यों की बड़ी सराहना होती है। मैं उन सभी बातों से सहमत हूँ, लेकिन जब आप इसको डेटा में ले आते हैं, जब आप इसको ट्राई करते हैं कि कितना इन्फ्लुएंस है हमारा दूसरों की तुलना में, तो एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स भी आता है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स आता है, उसके 2021 का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 36वें नंबर पर है भारत सॉफ्ट पावर के मामले में। अब पहले नंबर पर जर्मनी है, अमेरिका 6वें नंबर पर है, जो ब्रिटेन है आपका वो 3रे नंबर पर है। तो आप सोचिए कि जब आप बात करते हैं सुपर पावर बनने की तो कुछ आधार भी होना चाहिए, केवल एस्पिरेशन से नहीं होती हैं चीजें, आपको उसके लिए काम भी करना पड़ता है और बहुत सारी अन्य चीजें भी होती हैं जो काउंट करनी पड़ती हैं। तो जब भी आप सुपर पावर की बात करें तो इन चीजों का ध्यान रखें कि हम सुपर पावर बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे और क्या क्या स्टेप होगा, उसको भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, एक और सवाल जो मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा स्क्रॉल करके देखता हूँ कहाँ पे गया। एक तब तक दूसरा सवाल है, मैं आ गया एक सवाल आ गया। ये राजेश कुमार जी ने सवाल पूछा है, संक्षेप में आशीष। हाँ, उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के पास जल्दबाजी में जिस तरह से खाली किया गया, यदि नहीं किया जाता तो क्या विकल्प। अच्छा, इनका सवाल अब बेसिकली लिखा नहीं है उन्होंने ठीक से। सवाल इनका ये है कि भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान से अपना डिप्लोमेटिक मिशन हटाया है, इवैक्यूएट किया है, अगर वो वैसा नहीं करता तो क्या करता, अगर वो वैसा नहीं करता और भारत को क्या करना चाहिए था। जो मैं समझता हूँ, मेरी सोच से आपकी सोच अलग हो सकती है और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूँ भारत को मिनिमम लेवल का डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वहां रखना चाहिए था, एम्बेसी बंद नहीं करनी चाहिए थी। कारण उसका ये है कि आपके अपने लोग वहां फंसे हुए थे। भाई, हमारा डिप्लोमेटिक मिशन वहां था क्यों? जिम्मेदारी क्या होती है? आप इन थियरी समझिए, जिम्मेदारी क्या होती है एक डिप्लोमेटिक मिशन की दूसरे कंट्री में? बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जो आपके लोग उस कंट्री में हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनके साथ अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी को डील करने की भी जिम्मेदारी आपकी होती है। सपोज करिए कि मैं चीन जाऊं और मैं चीन में फंस जाऊं, तो मैं चीन में किससे मदद मांगूंगा? मैं चीन में अपने डिप्लोमेटिक मिशन से मदद मांगूंगा। अगर मैं पाकिस्तान गया और वहां किसी कारण से फंस गया तो मैं किससे मदद मांगूंगा? मैं अपने डिप्लोमेटिक मिशन से मदद मांगूंगा, इंडियन हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है उससे मदद मांगूंगा। अब आप जो है, अगर इंडियन हाई कमीशन ही इस्लामाबाद में नहीं है तो हमारे लोगों का क्या होगा? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना यह है कि भारत को इतनी जल्दबाजी में डिप्लोमेटिक मिशन खाली नहीं करना चाहिए था। थोड़े बहुत एश्योरेंसेस से आप इन एश्योरेंसेस को रिलाई भी कर सकते थे, उन पर आप रिलाई नहीं भी कर सकते थे। मैं समझता हूं कि आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट रही होगी कि आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके क्या आप अपने लोगों की कॉस्ट पर अपने कुछ डिप्लोमेट्स को वहां से हटाना चाहते थे? तो मेरा मानना है कि आपको मिनिमम प्रेजेंस वहां मेंटेन करनी चाहिए थी, खास तौर पर तब तक जब तक कि हमारे लोग वहां से सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाते। ये मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर मैं सही ही हूँ और आपके विचार मेरे विचार से मिले। ओके आशीष जी, एक सवाल मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। सत्येंद्र गुप्ता जी ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से किया है और ये कर्नल विजय जी के लिए है। उन्होंने यह सवाल पूछा है कि क्या भारत को तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए, और अगर यह देनी चाहिए तो किन शर्तों पर, क्योंकि तालिबान के कब्जे में का असर भारत में इस्लामिक कट्टरपंथियों के मनोबल में इजाफे के रूप में हुआ है। भारत इस समस्या से कैसे निपटे? और ये उन्होंने पूछा, और क्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वार, ये शब्द शायद आपने यूज किया था अपने प्रेजेंटेशन में, इसका अर्थ क्या है? बस ये सवाल है कर्नल विजय जी सर। थैंक यू डॉक्टर संजय। सबसे पहले मैं शुक्ला जी के बारे में 1 मिनट एक कर दूं। इन्होंने अभी बजट गिनाया था, सबसे पावरफुल आर्मी, उसके बाद में
देखिए, क्वांटिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी इज नो क्राइटेरिया फॉर फाइटिंग। जैसे आपने देखा अब वियतनाम में क्या थी उनके पास, कुछ नहीं था। मैं वियतनाम 2 बार गया हूँ स्टडी करने के लिए। अब उन्होंने जो है अमेरिका को भगा दिया, इतना पावरफुल नेशन। द सेम प्रॉब्लम एलटीटी के पास क्या था, अभी तालिबान के पास क्या है। सो इट इज द विल टू फाइट। एक जो है द अमेरिकन्स हैव नो विल टू फाइट वेर एवर दे हैव गॉन। You may have lot of equipment, you may have plenty of ships, aircraft. At the end of the day, अगर आपके माइंड में नहीं है, if you don't want to fight, you will not fight. हमने देखा है सियाचिन में, हमने देखा है गलवान वगैरह में। See, at the end of the day, you have to, the man behind the gun is more important than the gun itself. तो वो एक मेरा, so that should not be a criteria. वो एक scholar है, he has got his own view. I am not that thing, but as a soldier, I am saying, give me. अभी आपने देखा है कि 62 ऑपरेशंस में मेजर शैतान सिंह जो है रेजिंगला पास के ऊपर 120 आदमी के साथ उन्होंने लड़ा, 150 जो है लाशें पड़ी हुई थी। So there is no correlation between what you spend and ultimately what you prepare. That is one. As for the second the question, Sanjay ji, इनका क्या था? As far as the तालिबान को मान्यता देनी चाहिए। Should we recognize Taliban? Yeah. Basically, it's the political questions. But I feel that Taliban ISI के भूते पे बना है. Like it is still a Pakistan child, okay, fathered by US, and इनके जो है, that means अगर आप उनको recognition देते हो तो आप ISI को recognition देते हो. Somebody very rightly contacted, I think it was Dr. Pant, who said उनकी जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन पूरा ISI का जो है उनका चीफ बैठा हुआ था। Even now it is a remote control हो रहा है, and so as far as I am concerned, उनके साथ कोई बात हो ही नहीं सकता। What they should have done on the other hand, as a military man, I am telling you, Panjshir Valley, which is a formidable fortress था, Americans spent 2 trillion, उधर अगर जो है 1 billion भी spend कर लेते, from Kazakhstan and other places, that could have been a launching pad and a counter-offensive to take on. Abhi India is not taking up positions because we are not confident. We have no confidence in USSR, मतलब US. एक हमारा रशिया है, that is why we are trying to again start a dialogue with them. Unless, देखिए महाभारत में, चाणक्य में, everywhere I studied, whatever little I studied, everywhere they say you can never win a war all by yourself. You need an ally. At present, we don't have a strong ally. That's why thoda sa time ho raha hai. But as far as once we are on the sound footing, I feel somebody mentioned about you having somebody having the watch and the time. We'll have both the watch and the time. Provided we as an army, we are built up as and I'm glad, in the last about 7 years, lot of things are being done in it. But at the end of the day, too much of technology is not important. It is men, the morale of our soldiers. And who gives the morale of the soldiers? It is people like you, the general public, the intellectuals, the students. You give us the morale. We are there because you are there. That's what I can say. Thank you. Okay, sir. Fine, sir. क्या वर्मा सर आपका ऑडियो सही हुआ? वर्मा सर आपका ऑडियो, सर जरा ऑडियो ऑन कीजिए, देखें सर, क्योंकि सवाल जो इम्पोर्टेंट था। आया सर आवाज? हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। एक बार सर आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिए ना एक बार। अच्छा सर, एक बार आप डिस्कनेक्ट होके दोबारा जुड़िए सर। वर्मा सर, आप एक बार अपने को आउट करके फिर दोबारा जुड़िए। पंकज जरा इनको फोन करके वर्मा साहब को कह सकते, ठीक है? हाँ, एक सवाल जतिंदर मोंगा जी का है और बड़ा ही मुझे अच्छा सवाल लग रहा है, शायद ये खुद ही पूछना चाहते। मोंगा जी आप अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ, अपना सवाल पूछिए। पंजाब से हैं ये जतिंदर मोंगा, अपना सवाल पूछे। खैर, इन्होंने जो सवाल भेजा है मैसेज बॉक्स में कि क्या भारत अपनी गुडविल देखने के बजाय अफगानिस्तान में जनता की स्थिति को और वहां की अमानवीय स्थिति को प्राथमिकता देगा? क्या भारत
और बाकी देशों को अपनी आर्थिक नीतियों को अफगानिस्तान से दरकिनार करके तालिबान और आतंकी संगठनों के खात्मे के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या भारत सहित दुनिया के बाकी देशों की राजनीतिक दृष्टिकोण के बजाय सामाजिक और मानवीय संवेदना को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? कृपया रोशनी डालें। अच्छा, ये जतेंद्र मोंगा जी, आप पूछे फिर से सवाल। नमस्कार हाँ, सर। बस दो हाँ एक जी, मिनट। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोले। जी, हाँ जी, सबको नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ, मैं पूछना चाह रहा था जी कि क्या भारत को अपनी गुडविल देखने के बजाय अफगानिस्तान में जो आजकल है ना इतनी अमानवीय स्थिति चल रही है, उसको प्राथमिकता देके मतलब जो यूएन है या मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके ऊपर मतलब है ना अपना जो भी प्रभाव डालना नहीं चाहिए? मैं मतलब ये आपसे मार्गदर्शन आपका चाहता हूँ सवाल जी। मैंने पढ़ दिया, वही रिपीट हो जाएगा। मेरा हाँ जी, हाँ जी, आग्रह जी, जी। सुनील पंत सर से। सुनील पंत सर, अगर आप हमारी बात सुन रहे हो, मुझे लगता है कि शायद आप बेहतर इस पे प्रकाश डाल सके। सुनील पंत जी सर। सर। सुनील पंत सर, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सुनील पंत सर। ठीक है सर। हाँ सर, इस पे आप बहुत बेहतर बता सकते हैं सर, क्योंकि जो मानवीय पक्ष है कहीं ना कहीं वो आर्थिकी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जी सर, बताएं सर। देखिए, गुडविल तो एक बड़ा नेबुलस एफिमेरल किस्म का टर्म है। अल्टीमेटली आपका जो भी सॉफ्ट पावर है, इट हैज टू बी बैक्ड बाय हार्ड पावर, वरना वो सॉफ्ट पावर का मीनिंग नहीं होता। जहां तक बात है कि इंडिया क्या दबाव डाल सकता है, तो अभी आपने देखा होगा जो सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो डिस्कशंस और डिबेट्स हुए हैं, और अभी इंडिया के पास वहाँ के जो है सिक्योरिटी काउंसिल में वी आर द प्रिजाइडिंग कंट्री, तो उसमें जो डिस्कशंस हुए हैं, दे हैव अगेन हाईलाइटेड कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तालिबान से, जबकि वहाँ पे उस टाइम पे रशिया और चाइना ने उसमें एब्सटेन भी किया और उसको उन्होंने उससे अलग हो गए उस डिस्कशन से। इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि इंडिया के अपने इन्फ्लुएंस की वजह से इन लोगों ने एब्सटेन किया, उसको वीटो नहीं किया या उसको उन्होंने रोका नहीं, उसको अपोज नहीं किया। तो एक तरह से आप ये कहिए कि इंडिया की बात भी सुनी जा रही है और काफी जगह से इस बात को रिफ्लेक्ट भी किया जा रहा है कि यहाँ पे जो अमानवीय हमारे सामने खबरें आ रही हैं वो उनको रोका जाए। जो विमेन्स राइट्स इतने सालों में दिए गए हैं, जो बच्चों को स्कूल जाने के राइट्स दिए गए हैं, जो बाकी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, चाहे बहुत ज्यादा शायद ना हुए हो रूरल एरियाज में, उन सबको बढ़ाए रखना चाहिए। इसके अंदर एक चीज ये भी आती है कि एक सवाल पहले भी पूछा गया था, उससे मैं इसको लिंक कर रहा हूँ कि क्या यूएस का भी कोई इसमें रोल हो सकता है? अब यूएस मिलिटरीली जो वहां से विड्रॉ कर गया है, पर उसका कोई अभी रोल है? मेरे ख्याल से यूएस का भी अभी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चाहे उसने मिलिट्री स्पेस कंसीड करी है, यूएस ने जो फाइनेंशियल और जो कंट्रोल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक कंट्रोल फैक्टर्स, वो नहीं छोड़े हैं। आप देखिए कि आज की तारीख पे अगर उनको एसडीआर का जो फंडिंग है वो नहीं मिल रहा है, अगर आज उनका एड जो है वो बंद हो गया है, आज उनका अगर जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो फ्रीज हो गए हैं, ये सब यूएस का करा हुआ है। यूएस is now using its financial capacity to guide them into a path which is conducive, which is aligned with what the US and Western powers want. तो इसलिए जो यूएस का दखल है वो अभी चलता रहेगा। प्लस वो कहते हैं ओवर द होराइजन उनके पास कैपेबिलिटी है ड्रोन्स की, इसकी, तो मतलब ये भी इस तरह से दखल अपना करते रहेंगे। और ये भी मानना है कि आपके पास वहाँ पे कतार में और इधर जो आपका जो ये गल्फ स्टेट्स हैं उसमें आपके बेसिस भी हैं और काफी बड़े बड़े बेसिस हैं यूएस के। सो दिस काइंड ऑफ एन एंगेजमेंट विल कंटिन्यू। लोग बाग जो है इनके दो पक्ष रहेंगे, क्या ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आज चाइना के साथ उनको डील करने में जो कंफर्ट है वो ये है कि चाइना जो है वो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। वो जो है बेसिकली आपको हार्ड पावर का एक बेनिफिट देता है कि वो उसके ऊपर पर्दा डाल देता है। आज पाकिस्तान भी जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही चल रहा है पर ब्लैक में नहीं गया, वो काफी हद तक जो चाइना है उसके इंटरवेंशन की वजह से। तो इसलिए आप ये देखिए कि चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है और इसलिए तालिबान ने सबसे पहले जो आउटरीच किया है वो चाइना को ही किया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रेफर्ड पार्टनर्स होते, यहाँ तक कि चाइना ने उनको रफली 300 मिलियन का जो है असिस्टेंस भी ऑफर कर दिया है। तो
It is nowhere near the total assistance that they were getting, but it is a beginning. It is expected कि जो पहले वो ईरान से ऑयल ले रहे थे, $4 मिलियन का उनका ऑयल इंपोर्ट था, वो चलता रहेगा क्योंकि ईरान के पास मार्केट्स नहीं है. जहां तक टर्की है, वो भी घुसने की कोशिश कर रहा है और गुडविल बनाने की कोशिश कर रहा है. वो पाकिस्तान और चाइना को इस एरिया में सपोर्ट करेगा. रशिया जो है वो अपनी जो अंडरबेली है सॉरी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तालिबान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सबके साथ जो है मिलके वहां पे चाहे वो नजर रखा हुआ है, पर वो अपना डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर रहा है. वरना पंजशीर में देयर वाज नो रीजन कि अमारुल्लाह साले जो हैं उनको वहां से, उस एरिया से एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं मिल पाता. सो ये भी फैक्टर्स हैं. आज की तारीख में जो तालिबान का जो सिचुएशन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इट ऑन ए लीनियर प्रोजेक्शन कि इंडिया ये कर सकता है. इंडिया जो कर सकता है वो कई सारे नेशंस के जो इंटेंशंस है उनके साथ अगर अलाइन नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाए. वो जो अलाइनमेंट है उसके लिए इंडिया कोशिश कर रहा है और उसके लिए वो काम कर रहा है. एक सवाल मेरे लिए यहाँ पे है और जो कि मैं सोचता हूँ क्या which is चाइना की जो फंडिंग का जो वो है ऑप्शन. चाइनीज फंडिंग इज रेयरली बाय वे ऑफ कंप्लीट एड ऑफ इंटरेस्ट लेस एंड विदाउट स्ट्रिंग्स एड. वो जो भी फंडिंग करते हैं वो नॉर्मली एज कमर्शियल लोन्स करते हैं एट इंटरेस्ट्स व्हिच आर ऑफ अ कमर्शियल नेचर. इसीलिए जो है आप देख रहे हैं हम्बन टोटा में, इसीलिए आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, इसीलिए आपने देखा कि म्यांमार में, इसीलिए बांग्लादेश ने उनके कुछ प्रोजेक्ट्स ही कैंसिल कर दिए क्योंकि वो वायबल नहीं बन रहे थे और उनका जो रिपेमेंट था इट वाज इन्फ्लेटेड. उन्होंने इसके अंदर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट इन्फ्लेशन किया है वो भी सब्सटैंशियल किया. इस तरह से उनके पास और भी कंट्रीज हैं जिसमें चाइनीज के इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो धीरे धीरे उस तरफ मूव कर रहे हैं कि दे विल हैव टू एक्चुअली हैंड ओवर देयर टेरिटरीज और देयर एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स टू चाइना, ताकि वो अपना लोन को जो है वो मैनेजेबल रखे. आज श्रीलंका में देयर इज अ फूड स्कैरसिटी. क्यों? क्योंकि वो रिपे नहीं कर पा रहे हैं, उनका पैसा ही नहीं है फूड इंपोर्ट करने के लिए. अभी तक इंडिया उनको एड दे रहा था, पर अभी इंडिया भी देख रहा है सिचुएशन को. जब से उन्होंने हमें जनवरी में जो ईस्ट कोलंबो पोर्ट था वहां से निकाला नहीं. मुझे याद है जब मैं कोलंबो में पोस्टेड था तो मैं इमीडिएटली गया था IPKF के विड्रॉल के बाद, जबकि वहां बोर्ड्स लगे होते थे, वी डू नॉट एक्सेप्ट और सेल इंडियन प्रोडक्ट्स. बहुत बड़े बड़े जनता विमुक्ति मोर्चा के वहां पे जो था पेरू में ना, उसके वहां पे बोर्ड्स लगे हुए थे. एक दौर वो भी था. उसके बाद श्रीलंका ट्राइड टू कम क्लोज टू अस. हमने भी श्रीलंका को बहुत फैसिलिटीज दी. आज वो पूरा तरह से चाइनीज के चंगुल में जा रहे हैं. दैट इज अगेन समथिंग. चाइनीज जो है दे स्पेशलाइज इन डेट रिलेटेड कंट्रोल्स. तो यहाँ पर भी अगर अफगानिस्तान लेता है, रिपेमेंट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. आज हम $3 ट्रिलियन का मिनरल वेल्थ की बात करते हैं. अमेरिका वाज सिटिंग देयर फॉर 20 इयर्स. अगर वो इतना आसान होता है एक्सट्रैक्ट करना और निकालना, तो निकाला क्यों नहीं? सोचने की बात है. थैंक यू सर. वर्मा सर, आवाज आ रही है आपकी? वर्मा सर आप बताएं. हाँ बिल्कुल, फाइन सर, फाइन सर. तो जो पहला सवाल था आपसे सर, अब आप सीधे उस पे आ जाए सर. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तरीके से इसको अफगानिस्तान भारत के संबंधों को किस प्रकार से परिभाषित किया जाए, आने वाले समय में किस प्रकार से देखा जाए, सर प्लीज. देखिए, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब बहुत खूबसूरती से अभी दे दिया गया और मुझे उसमें बहुत कुछ कहने को नहीं है. एक चीज जो बेसिकली पूछी गई कि भाई इंडिया कोई पोजीशन क्यों नहीं ले पा रहा है अफगानिस्तान पे, भाई इंडिया इज सो एम्बिवेलेंट एट दिस मोमेंट. तो देखिए, ये जो फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज होते हैं वो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से मिक्सड अप होते हैं. उनमें कोई बहुत नीट डिवीजन नहीं होता है कि यहाँ से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू हो रही है और यहाँ से फॉरेन पॉलिटिक्स शुरू हो रही है. दे आर एब्सोल्युटली इंटरट्विन्ड. तो अभी हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हमने देखा कि बहुत जगहों पे प्रो तालिबान सेंटिमेंट्स दिखाए गए, चाहे वो बहुत ही मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी के द्वारा ही क्यों नहीं दिखाए गए, लेकिन एक वो चीज है. जबकि बाई एंड लार्ज मुस्लिम्स इन इंडिया दे नो इट वेरी वेल कि भाई सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है. इसलिए मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स आर विद द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री.
तो अभी एक प्रकार से मैं ये देख रहा हूँ कि तालिबान पे देयर इज ए पोलराइजेशन इन द कंट्री, बट the good part of this polarization is it is not on the communal lines. It's not Hindu versus Muslim communalism, because हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तालिबान को लेकर पाकिस्तान चाहे अभी जितना खुश हो रहा हो, लेकिन अपने यहाँ एक कहावत है ना कि भाई अगर आप गलत लोगों का साथ देंगे तो अल्टीमेटली वो बूमरैंग करके आप ही को सबसे पहले नुकसान पहुंचाने वाला है। और जैसा कि अभी किसी प्रेजेंटर ने बहुत खूबसूरती से बात कही कि भाई ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ तालिबान why we are forgetting that in spite of the Taliban there is a protest in Taliban going on, और बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं एंटी तालिबान वो कोई रिपोर्ट नहीं हो रही है। तो इंडिया का जो कनेक्शन है, इंडिया को बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ रहा है। उसको तालिबान एक द ओनली टेररिस्ट रेजिम इन द वर्ल्ड को भी देखना हो रहा है, जैसा कि अभी हमारे कर्नल साहब ने कहा या उसके पहले किसी ने कहा कि भाई इफ रिकॉग्नाइजिंग और लेजिटिमाइजिंग तालिबान गिविंग डिप्लोमेटिक रिलेशन रिकॉग्निशन वुड वर्चुअली डी फैक्टो बी रिकॉग्नाइजिंग आईएसआई एंड ऑल। तो ये सब फैक्ट्स हैं, हम लोग जानते हैं कि आईएसआई है, ये है, वो है, दे आर एक्टिव प्लेयर्स इन द पाकिस्तान पॉलिटिक्स। बट when you go to Pakistan, then you find that within Pakistan there is not one Pakistan, there are 4-5 Pakistan. One is the regime Pakistan, one is the army Pakistan, one is the ISI Pakistan, one is the terrorist Pakistan, and one is the people of Pakistan. And the people of Pakistan are as friendly as anybody in India would be. When I visited Pakistan at the invitation of Lahore University, I was absolutely, taken aback, taken surprise. How cordial the people's welcome was, and how it looks like absolutely that I was in my own country. तो एक अलग पाकिस्तान में एक अलग पाकिस्तान है, वो मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम कभी देख नहीं पाते हैं, जो पाकिस्तान लोग नहीं जा पाते हैं। इसी प्रकार से अफगानिस्तान में देयर इज एन अफगानिस्तान विच इज बियॉन्ड तालिबान, और वो उनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। और वहां पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और व्हाटएवर इट इज, अगर वो इस समय अपनी लेजिटिमेसी वहां पे डिमॉन्स्ट्रेट करता है वायलेंस के थ्रू या किसी तरीके से, तो इंडिया के लिए वो बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि इंडिया विल हैव टू चूज बिटवीन द रिजीम एंड द पीपुल। तो ये जो डाइकोटमी वहां बनी हुई है कि इंडिया हैज टू चूज बिटवीन द रिजीम एंड द पीपुल, और वो इट्स एक प्रकार से एक तरफ गड्ढा है और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति बन रही है। क्योंकि अगर हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो हमारा डायलॉग कैसे होगा? जो कंसर्न सब लोगों ने व्यक्त किए कि भाई ईरान, पाकिस्तान और चाइना का जो ये ट्रायंगल है, इसको हम कैसे डील करेंगे? हाउ वी प्रोटेक्ट अवर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान? हम वहां के लोगों को उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स अपार्ट, आई वोंट केयर फॉर माय इन्वेस्टमेंट। $300 billion इज it might be a big amount for a country like us, but that's not so very important. The relationship, the people to people relationship for me is more important than anything else. और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी उसमें है कि अगर वो तालिबान को रिकॉग्नाइज करती है तो एक लेजिटिमेसी ऐसी वो देती है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जिसको कि वो लेजिटिमाइज नहीं करना चाहती है। और अगर वो उनसे बात नहीं करती है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उनसे किसी तरह से संबंध नहीं रखती है, तो यू आर लीविंग योर ओन पीपल एंड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान इन लर्ज, and also so many other things, economic and other political and diplomatic complications are there. तो जो किसी ने पूछा कि भाई इंडिया क्यों अभी पोजीशन तालिबान पे नहीं ले पा रहा है, मुझे लगता है कि इंडिया इज फॉलोइंग अ प्रोसेस, ये प्रोसेस ऑफ वेट एंड वॉच। अभी तालिबान में कुछ भी कह पाना कि भाई हाउ लॉन्ग दिस तालिबान, जैसे कि कर्नल साहब ने कहा कि भाई द तालिबान इज नॉट ए होमोजीनियस ग्रुप, इट्स ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ 4 petty organizations, and how they will fight among each other, and how one day Taliban will break into 14 groups and several groups, nobody knows. And then उसकी legitimacy का क्या होगा? आप किसको मानेंगे कि 14 लोगों को मानेंगे कि एक आदमी को मानेंगे कि आपस ही में वो लड़ जाएंगे? तो अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है या हमारी कोई भी गवर्नमेंट हो, हम वी आर टॉकिंग ऑफ द कंट्री एज इंडिया, हमारे इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो यही है कि भाई हम एक ऐसे रिजीम से, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, एक ऐसे गवर्नमेंट से उसको रिकॉग्निशन देना चाहेंगे which has a legitimacy of the people, which has a mandate of the people.
और वो चीज डेमोक्रेटिक जब होती है तभी हो पाती है। तो वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस प्रकार से एक जो फोर्सबल टेक ओवर हो गया है अफगानिस्तान का, उसमें देना भी और भईगत हिसाब छछूदर की निगलत बने न उगलत बने, इंडिया उस पोजीशन पे है। इसलिए अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया ने राइट है या इंडिया रॉन्ग है। We are following a process of wait and watch, and there are so many things you can take sides कि इंडिया को करना चाहिए, इंडिया को नहीं करना चाहिए. But if you are the prime minister of the country, if you were the defense minister of the country, if you were the sovereign power government of the country, then of course probably you will also be forced with this kind of an ambivalence. And therefore अभी हम लोगों को इतनी जल्दीबाजी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, and let us give some support and handle to our government and due course of time. जो भी अच्छा है, कंट्री पे विमर्श होता है। हमारी डेमोक्रेसी का सिस्टम है कि हजारों लोग हम लोग बात करते हैं, उसमें से कोई चीज उभरती है, फिर वो पॉलिसी प्रोसेस में जाती है, फिर एक डिसीजनल प्रोसेस में जाती है। इट डज टेक टाइम। ये कोई तालिबानी रिजीम थोड़ी है, ये कोई डिक्टेटोरियल रिजीम थोड़ी है कि वन फाइन मॉर्निंग आई गॉट अप एंड सेड कि साहब रिकॉग्नाइज तालिबान और डोंट रिकॉग्नाइज तालिबान। So it's a policy process, and that policy process will probably take some time, and that's why this ambivalent position. Thank you. थैंक यू सर। एक सवाल प्रतिमा है, प्रतिमा शायद पूछना चाह रही कानपुर से। प्रतिमा अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्रतिमा सर, अनम्यूट है। सक्सेना। हाँ हाँ सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, हेलो एवरीवन, बहुत अच्छा वेबिनार चल रहा है इस समय। मेरा नाम प्रतिमा सक्सेना है, मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट डीएवी कॉलेज कानपुर से बोल रही हूँ। सर एक चिंता का विषय तो हो ही गया है, जो तालिबान का आधिपत्य हो गया अफगानिस्तान पर, एक सॉवरेन स्टेट पर इस तरह का एक प्रवृत्ति का दिखाई देना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मुझे लगता है पर्सनली कि एक चिंता का विषय है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या कोई आतंकी संगठन जब इस तरह से किसी राज्य के ऊपर अपना आधिपत्य करता है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चिंता का विषय नहीं है कि कहीं कोई ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं डेवलप हो जाएगी कि आतंकी समूहों को इससे महत्वाकांक्षा तो उनकी अवश्य ही बड़ी होगी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि उनको अभिलाषा नहीं होगी कि पूरे संसार पे, विश्व पे हम अपना आधिपत्य स्थापित कर लें। और उन्होंने अपना प्रारंभ जो है वो अफगानिस्तान से किया है। वहाँ की जो सामाजिक स्थितियां हैं इस समय, शैक्षणिक स्तर, मतलब हर स्तर पर, मानवीय स्तर पर स्त्रियों की अगर एक विमर्श हम लें तो स्त्रियों के लिए तो बहुत ही संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई अफगानिस्तान में। तो कोई ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं डेवलप होने जा रही है जैसा हम देख रहे हैं इस समय? ये मेरा प्रश्न है। केतकी नारायण जी यहाँ से हैं कुमायूं से। अगर वो सुन रही हो तो अपना सवाल पूछ सकती है। केतकी, डॉक्टर केतकी नारायण, अगर उनकी आवाज आ रही है तो कोई बात। ये सवाल किनसे प्रतिमा आपका? सर जो भी आंसर करे इसका। प्रोफेसर गोपा कुमार, हैव यू हर्ड क्वेश्चन? आई वुड लाइक टू हियर यू वंस अगेन। या सर अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले। Can somebody summarize the point once again for me? वर्मा सर आप ही सवाल सर ये रखो, प्रतिमा वाली सर। Dr. Pratima Saxena is asking from DAV College Kanpur that the takeover of Taliban, supposedly a terrorist regime, will it is it not a matter of concern for the global community, and will this not give a legitimacy to this kind of a tendency in many more countries and many more regions? Probably that is her question. Thank you. Thank you, Dr. Saxena. The global community, let us say United Nations, honestly, what it do during the whole process when this elected government fell down in Afghanistan? So from the part of the United Nations, we did not get the kind of help, rather than even the NATO failed there. So looking at the dynamics from a moral perspective, as we expect from an international public opinion, I don't think it will help beyond what we can expect at this moment, because the stakes are so high that the actors are also very much interested that they have their own control. Take the example of Security Council, Russia and China, they have veto power, so they can block any kind of an international global opinion going against Taliban. Secondly, look at BRICS. Again, you will find, except Brazil, India, Mexico and South Africa, both China and Russia will checkmate.
So the problem is that the new power game has started. There was a power vacuum when the United States left, but that was anticipated by Russia and China, of course, by using Pakistan as a ploy. And naturally, they will try to assert in the situation, and therefore, global community can't do much on this. It's a sad plight that you will find Taliban as a militant force continues to govern the country. But as my initial presentation mentioned, that there could be a section of what we say good Taliban. If it is so, let them be brought to the spirit of democracy and constitutionalism. If they are willing to follow the rule of law, then definitely human rights, women's rights, education, and other things can follow. Sometimes it can happen because ultimately Taliban need money, need help. So they may have to follow some of the conditionalities that can be imposed by United Nations and countries like India, where they can say that you have to follow certain international norms and justifications. On the other side, the negative point is that, as Dr. Verma also mentioned rightly, Taliban consists of numerous groups, heterogeneous groups. So if the upper hand goes to the militant groups who again try to follow terrorism and anarchy, then again Afghanistan is going to be in peril. So that's a dilemma for us. Thank you. Thank you, sir. Dr. Ketki Tara is there. I think she can ask questions. Yes. Thank you, sir. Good afternoon to all the eminent personalities, distinguished speakers, and members of the academic fraternity, and special congratulations to team CSSP led by Professor. अपना वीडियो भी ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लें. जी, by Professor A.K. Verma sir and Dr. Sanjay sir. So thank you so much for giving us this opportunity to be a part of this intellectual feast, I would say. And it has been an intellectual feast since morning, and I would love to join it further. So there was a question that US, after its debacle in Iraq, which happened, finally it released a Chilcote report, which said that it wasn't that worth it. I mean, they had invested their men, material, and all the resources in Iraq under the impression that they had those bioweapons. But then later on, they came up with an apology. So similarly, do we think that there is some sort of apology coming up from the Biden administration for this miscalculated attempt? Or was it like they were in, like one of the esteemed speakers said that America and Taliban, they were hand in glove in this together. They had not shared the crucial appendices like it was shared. So what would you have to say about this, sir? Ashish? Sir, actually, Americans knew that Saddam Hussein doesn't have weapons of mass destruction right from the beginning. They used that pretext. They didn't tell us, everybody. I mean, they make a fool out of the world that, look, we are going for against somebody who is having weapons of mass destruction. Actually, they knew it very well. So don't think that Americans don't know. Americans have invested lots of, their efforts in research in every other country. So they know the situation very well. It is how they use it. And I have seen that people talking about humanitarian intervention, all these things are okay. In the end, international relations are conducted on the basis of national interest. Do you think Americans don't know what is happening in Xinjiang? Do you think Americans don't know what is happening in Balochistan, in Pakistan occupied territory in that sense? Do you think Americans don't know what is happening in Gilgit-Baltistan? They know it very well. But they know, and they also know when to use what kind of pretext to do what kind of operation, right? Okay. So yes, we must differentiate between that. That's only thing I would like to say. And one more thing, Colonel Saab was telling about the morale and everything else. That is okay. I agree with that. But if we have to differentiate between various military powers throughout the world, there are certain parameters to follow.
And if you follow those parameters which I mentioned, you have to decide on that. Otherwise, if you follow morale and everything else, so do you think Taliban has just defeated Americans in that way? If you believe in that way, so do you think that Taliban can be termed as the #1 military force in the world? No, they cannot be termed. So, but I'd say, met. so, but I'd say, don't you think the NATO forces, they've been reduced to a farce? Because that we are is deploying, that I agree with you. That I agree with you. Yeah. It was, you know, Americans knew what they were doing. Americans, you know, they started engaging Taliban long back. Yeah. It's not that they started engaging Taliban 3 years ago, 4 years ago. They are engaging Taliban since 2010. Because at that point of time, they realized that militarily they are not going to be there all the time. They have to vacate Afghanistan. They knew it. It was only they were negotiating terms of those withdrawal, right? Okay. So that the terms are negotiated. And there's one more point. Somebody said that Americans handed over Afghanistan to Taliban on plate. No, Americans handed over Afghanistan to Pakistan and China on plate, not to Taliban. They know it very well who is handling them, who is handling whom, what, in what way. So that's my humble observation. Yes. Thank you, sir. But don't you think that NATO forces have any relevance now? Should they be dismantled, or I mean? No, they won't be dismantled. There are other interests as well. They won't be dismantled as of now. I think my understanding goes they are not going to be dismantled. It will be there. Okay. Thank you, sir. ब्रिगेडियर संदीप कुमार हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर संदीप कुमार, हेलो, अपना हैंड रेज करें, उनका कोई सवाल है? ब्रिगेडियर संदीप कुमार. I can hear you, but I have no सवाल. It is not सवाल. I had made a. If you have any kind of question, please do ask. No, I have no questions. Okay. Thank you. What I said, one has to, the most important thing in an international relation, one has to understand that it is your own interest. So I have written in the chat box what exactly is going through. And this is not going to be a thing which is going to end in 2 months or 3 months. This is a very long drawn thing which is going to happen. In Afghanistan, armed resistance is going on in Panjshir. Protests and raising of voices are happening in many areas inside Afghanistan. Many are not being reported because the journalists are being apprehended and put in jail. Economic difficulties and shortage of food and currency are also happening. COVID is also troubling the population. International community has expressed the need for Taliban to ensure their land is not being used for terrorism. Otherwise, they will not support them. In the meantime, who has made this Taliban? It is Pakistan. And Pakistan is making hay in this situation to get over their economic problems and trying to get funds in the name of supporting Afghanistan population by helping EU countries to extricate its population. So it's a quagmire. And China is also trying to make maximum out of it. But if you see the members of their governance, they have said, 2 of them are basic supporters of ETIM, that is East Turkmenistan Islamic movement, which is working in the Uyghur area. There are a lot of interesting groups. In addition to that, there's a lot of interest groups functioning within Afghanistan. There's a lot of group dynamics happening within Taliban because Haqqani has been given the thing which is not liked by the son of Mullah Omar. So there is a tussle going on there also. So Haqqani has been given interior ministry and the control of 6 eastern districts of Afghanistan. And that is again at the behest of Pakistan. When Pakistan has actually what they have achieved by this is shifting of the Durand line westwards. Because shifting of Durand line westwards means they don't want, Pakistan wants the Durand line to be accepted. And in that case, if there is any problem, they should have a bargaining thing. Whereas Taliban will not accept the Durand line because basically Taliban is Pashtunis and the FATF area, frontier area is also part of Pashtuns. Tehrik-e-Taliban is not along with Pakistan fully. So it is going to be a long drawn affair of years to come. Russia and CAR countries, though Russia is, be keeping quiet and, abstaining and all those things, they are quite worried. The CAR countries, Russia's, countries like Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, all are worried about their own stability. There is no problem in that area now. So India has to do all this, all in her hands to influence diplomacy
diplomatically to make Pakistan on the defensive, because India's this thing is not with Afghanistan. The Pakistan is trying to achieve maximum out of it to get out of the their economic problem, and also it is all ISI directed. In Panjshir, who is fighting? It is a Pakistan special forces have been inducted there and fighting. So they are trying to get all these things to ensure that they get the maximum out of this things. Whereas our diplomacy geopolitical, let me be very clear on that. We don't have to go to USA, Russia, China, or Iran to get things done. We should understand our own this thing. Though we may not be a superpower, but definitely we have say in the regional this thing. So we have to do what is in our best interest. If we can get other countries to follow that, get it. But don't be part of something and try to do something. That should not happen. So we should do what is in the best interest of us. And for now, it is wait and watch is the best policy, because I am sure there are two things going on, not with Taliban, but there is many issues. In case there is a, if you remember, India has done a very good thing to go to Chabahar. Through Chabahar, you can go to the area, the other area through Iran, you can go. Yes. How we'll get it done and all those things is there. Then we have got an air base in Tajikistan. We can use that. So there are many ifs and buts, which I'm sure which will be taken care of by our diplomats as well as the ministry. And I'm sure all these things are going to not going to get ended in 1 day or 2 days. It is going to be years. These things are going to be years. Whereas if you see the Taliban, what they are doing, they are not, the protest. Earlier Taliban, what they used to do, there is no question, there is no talking. They used to shoot. Here, the protest is happening. They are trying to control all those things. So let us wait and watch. See, that is the best way to deal with the current situation. And I am sure India will come out with a very good way to deal with the situation, lest Pakistan make full use of that, get funds, and permit terrorist organization to get into Kashmir and other parts of India. Because anything happening like this will embolden the entire terrorist community across the world. That is where we are in trouble. Thank you. Okay, sir. Fine, sir. So on that note, that India should wait and watch on Afghanistan. So this should be the principle which India should follow in the coming days or in the coming months. Or we are running short of time. But before winding up this first session, because it's we have just we are left with only 3 minutes. I once again request Professor Verma, A.K. Verma Sahab, Director of CSSP. सर ये जो फर्स्ट सेशन रहा है, इसके जो हमारे जो एस्टीम्ड स्पीकर्स रहे उनको सर आप ही धन्यवाद भी करें, और एक एंड नोट पे, और दूसरी बात ये कि सेकंड सेशन में फिर हम लोग 2 बजे जुड़ेंगे। सर वर्मा सर। संजय जी, मैं किस शब्दों से धन्यवाद करूं अपने इस एमिनेंट पैनल का, और जाहिर है कि हम सभी लोग बहुत सारे वेबिनार्स वगैरह अटेंड करते रहे हैं, but the kind of seriousness, the kind of focus, the kind of sequencing, the kind of trajectories, the kind of domains that you have structured for this entire first session has been absolutely engaging, and it has been really very, very befitting to the occasion. And each of the speaker has been gem of a speaker, and I must say that personally I have greatly benefited. I did not know anything about Afghanistan and Taliban, and the way it has been conducted by you and put the whole thing in a very sequential manner, Ashish giving us the backgrounder, and as he rightly said, the first speaker has certain special responsibilities which he very beautifully discharged. And then bringing in the military aspect and the economic aspect and the geopolitical aspect by Gopa Kumar and other friends, it has been just, a very compact thing, and that has been followed by a interactive session. I wish we had time and many more speakers would. I can see our friend Professor Madan, and I would have loved to hear him also. But I look forward to hearing his views in the second session. And most of the friends who have been left out from joining this, because of some technical glitch,
I apologize to them because I am told that many are watching now on the YouTube. So it's a very well attended program, very well received program. And I think we have greatly benefited. For that, I am very grateful to each one of you, the panelists and the participant both. And surely, since you are all glued to the screens, you must be feeling dire need of a cup of tea or coffee, and of course some food. So let us break for half an hour, and by 2 o'clock we again return for a very exciting second session. So thank you very much for being with us, and meet you again at 2 o'clock. एक मिनट sir. Before winding up this first session, I request you all here to make your video on. सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, सभी लोग, जिससे कि ये स्क्रीन शेयर हो जाए. सभी लोग वीडियो ऑन कर लें, जितने भी लोग हैं सभी ऑन कर लें. जी, तो ये थोड़ा 1 मिनट का जो कि समय है भी हमारे पास, और हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि सेकंड सेशन में एग्जैक्टली वी वुड बी ज्वाइनिंग एट 2 o'clock. अच्छा, मैं अभी एम्बेसडर साहब को सुनना चाहता था, लेकिन वो कहीं चले गए. मैं चाहता था कि आज सवाल पे, लेकिन कोई बात नहीं. He is there, Sanjay ji is there. अभी आया, जस्ट वो अभी he is very much there. जी. Viren, तो can you unmute yourself and just say a couple of words about the first session? Okay sir. Ambassador sir. Okay. Yeah. मैंने शुरू में शुक्ला जी का प्रेजेंटेशन सुना था, उसके बाद मुझे कुछ काम था तो मैं निकल गया. बट मैं अपने, जब मेरा टाइम है तो मैं उसमें बातें करूंगा. ओके सर. और उसके बाद किसी के अगर सवाल होंगे तो उनको भी लेने की कोशिश करेंगे. Alright. तो इसी नोट पे हम लोग शुक्ला जी का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन था, तो उन्होंने सारी चीजें कवर करी हैं बहुत अच्छे से. बाकी लोगों ने भी किया होगा तो मैं सुन नहीं पाया. तो अगले सेशन में रहूंगा, मैं 2 बजे ज्वाइन करूंगा आपको फिर से. ठीक 2 बजे हम लोग पुनः ज्वाइन करते हैं इसी नोट के साथ हम लोग. One clarification, sir. Yes. Suppose we close the link, can we rejoin in the same link? Yeah. No. Of course, the same link will work. It will work. No, sir. We have to keep it on, I think. Suppose we close it now, we may lose it. Okay. As per your wish. So keep it on. Yeah. Keep it on. That's what happened in the first session to people we have got in the WhatsApp messages. Oh, yeah, there is. Once you lose the space, you cannot rejoin, I think. Okay. If there is a crowd. Now it is only 55, but 55. Yeah. It is a process 100. But the people who are on the YouTube, probably they would switch over to this. Yeah, may deprive you. But this is more, so it's better to be glued to this and connected. By closing the video. Thank you, everybody. It was a great session, and meet you again at 2 o'clock. See you. Bye-bye.